Evening to one and all present here. Today I am here to introduce all of us to the lady who is further gonna take the charge of introducing all of us to our respected and learned speakers. CA Dipti Jain, on whose shoulders the burden of smoothly carrying on our two-day tax conclave lies. CA Dipti Jain has mentored online professional training, education and skill development platform Gyan Station, wherein she has conducted more than 100 seminars and 50 plus webinars. She has her website gyanstation.com, wherein she is into corporate training, conducting seminars and webinars for the professionals. She has been awarded Star Woman of WIRC of ICAI on this Women's Day. She has also been awarded by BSc India as Women Power in EdTech Industry for her Gyan Station platform. She is currently on board in Ethical Standards Committee of WIRC of ICAI. Let us all welcome CA Dipti Jain, our Master of Ceremony for our 5th edition two-day tax conclave. CA Purushottam Khandelwal ji, CA Sunil Shah, Advocate Ramesh Trivedi, Advocate Amit Soni, Advocate Dhruven Shah, Advocate Moleen Shah, CA Maulik Patel, CA Sanjay Patel to escort our eminent speaker, CA Girish Ahuja sir, on the dais. After the inaugural session, let us start with the first technical session. Here I take the privilege and honor for the second time to introduce the Guru of Direct Taxes, CA Girish Ahuja sir. In this year, he has completed 54 years of his journey in CA profession. He was nominated by the Government of India as member of the task force for redrafting the Income Tax Act and new income tax law, and the report thereto was submitted to the Finance Minister. He is independent director of the various organizations. He had authored over 25 books on direct taxation, both for students and professionals. His books are used as a standard reference material for professionals and students across the country. Today, it's 4,211 deliberation by the sir. So I request you all for the big round of applause for completing this number. It's a big achievement for any profession. He had given the lectures on various topics of direct taxes organized by the ICAI, ICSI, Chamber of Commerce, Management Institute, and various other organizations. He had been president of SRCC Alumni Association for over 20 years. I would like to quote few lines for sir. Sir, आपके लिए अर्ज है, इत्तेफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह, खुद बनाता है जहां में आदमी अपनी जगह, और ऐसी ही जगह इस जहां के हर एक प्रोफेशनल के दिल और दिमाग में बनाई है हमारे गिरीश आहूजा सर ने. भारत में कोई भी प्रोफेशनल ऐसा नहीं है जिसने गिरीश सर की बुक्स को रेफर ना किया हो. He rules the mind and heart of professional through the light of his knowledge, and we all have gathered here to listen to him. With these words, I request sir to please address our enthusiastic audience. Over to you, sir. Before that, I request CA Purushottam Khandelwal sir and CA Advocate Dr. Dhruven Shah to present a memento to and a book to us, sir.
Now I request Girish sir to please take the charge of the dais and address our today's August gathering. Over to you, sir. I can't stand here and talk, you know. Sitting on the dais, a very young, energetic, of course, Central Council member of the Institute of Chartered Accountants of India, and my very good friend, CA Purushottam Khandelwal ji, co-convener of this function. Another co-convener sitting my left, right and left, of course, there are two co-conveners, Advocate Dr. Dharmen Shah, co-convener, Advocate Sunil Shah ji, Advocate Maulin Shah, Advocate Ramesh Trivedi, from Nadyal, Advocate Amit Soni ji, CA Maulin Patel ji, and from Anand, CA Sanjay Patel ji, and Master of Ceremony, जिन्होंने आपने देखा इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं, मैं फ्रॉम मुंबई दीप्ति जैन जी, ladies and gentlemen. Well, friend, last time we were sitting at the dinner table, I told there are two topics in income tax which nobody knows. One is Hindu undivided family, and the other is charitable trust. Trust me, किसी को कुछ नहीं आता है. Particularly charitable trust now. Even for Hindu undivided family, Supreme Court had to change their judgment 3 times in the case of a daughter. So you can understand how difficult these topics are. This law has been changed recently. First regime, second regime, section 1023C is the first regime, section 1112 is the second regime. There were a lot of difference between these two regimes. I remember when we were redrafting the law, I said, what is this? You are having one section 1023C for educational institutions, medical institutions, and the same is there also under section 1112, and they are getting the benefit. But you find lot of difference between 1023C and 11 and 12. Then the department took 2 years to redraft section 10 clause 23C. आपको मालूम है section 10 clause 23C has 23 provisos. How many provisos? 23 provisos. Under each proviso, there is an explanation also. Explanation 1, explanation 2, explanation 3. भूल गए? 2A, 2B. इतनी तो explanations है. 15 पेज का सेक्शन है 10 clause 23C. मैं क्लॉज क्यों बोल रहा हूँ? कि कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें सब सेक्शन नहीं होता. हमारे जज साहब ने भी और सुप्रीम कोर्ट में भी सब सेक्शन ही बोलते हैं. सुप्रीम कोर्ट में भी बोलते हैं जज, और यहाँ भी बोला, और हर जगह बोलते हैं. आज उन्होंने बोला सब सेक्शन 15 और सेक्शन 2. सेक्शन 2 में कोई सब सेक्शन होता ही नहीं, वो क्लॉज 15 ऑफ सेक्शन 2 है. लेकिन ये उनकी गलती नहीं है. एवरीवेयर, इवन इन सुप्रीम कोर्ट, वो कहते हैं सेक्शन के बाद तो सब सेक्शन ही आता है. ये कैसे हो सकता है? क्लॉज आ जाएगा. बट देयर आर सर्टन जेनरिक सेक्शन, सर्टन कॉमन सेक्शन जिसका हेड नाम डिफरेंट है. उसमें जैसे सेक्शन 2 talks about definition, and there are not one definition, there are so many definitions given in section 2. Whenever you talk about subsection, subsection talks about subsection. And when there is a clause, clause talks about subsection. When there is a subclause, subclause talks about the clause. When there is an item, item talks about the subclause. When there is a sub-item, it talks about the item. तो फिर सेक्शन 2 में सबसेक्शन इसलिए नहीं है कि फिर तो सेम डेफिनेशन की बात है. तो वहाँ क्लॉजेज होती है, जेनरिक सेक्शन. Each clause is important. Section 2, clause 31, person. Section 2, clause 34, total income. Section 2, clause 15, he told you, charitable purpose. ये clauses है. Section 10, income which do not form part of total income. क्या एक income exempt है? So many incomes are exempt under Section 10. So Section 10 does not have subsection. It has clauses. Section 10 clause 23C. subsection नहीं है. कभी आपको ये गलत बोल रहे हैं. Section 10 में सारी clauses है. Section 10 clause 10 gratuity. Section 10 clause. Section 10 13A HRA. These are clauses. These are not subsection. Section 16 deduction from gross salary. Heading का नाम है deduction from gross salary.
लेकिन नीचे क्लॉजेज हैं, सेक्शन 16IA स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेक्शन 16(2)I एंटरटेनमेंट अलाउंस, सेक्शन 16(3)I टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट. सो कई सेक्शन है जिसमें सब सेक्शन नहीं होता है, वहाँ क्लॉजेज होती हैं. लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक भी वो सब सेक्शन ही बोलते हैं. वो कहता पता कैसे लगेगा, इनकम टैक्स एक्ट पढ़ोगे तो पता लगेगा, पढ़ता कौन है जब पता लगेगा. सो कमिंग बैक नाउ सर, बहुत प्रॉब्लम हुई. जजमेंट जो करूंगा वो जो पूछना पूछिए, लेकिन 2 रिलीफ मैंने बड़ी मुश्किल से दिलवाए थे, अभी अभी दिलवाए हैं. एक रिलीफ है, यू हैड फाइल्ड सेक्शन 10 ऑडिट रिपोर्ट अंडर फॉर्म 10B एंड 10BB. लोगों ने कंफ्यूजन कर दिया. व्हेन दे वर सेक्शन 10BB में रिपोर्ट 10 फॉर्म 10BB भरना था, उन्होंने 10B भर दी, और जहाँ 10B भरना था वहाँ दे हैव फिल्ड अप 10BB. क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या थी, 10B was supposed to be filed if your gross receipt exceed rupees 5 crore, and then it was or you do not have received any foreign contribution, or you have not incurred any expenditure outside India. और 10B कब BB भरना था, less than 5 crore and वहाँ और नहीं है, and no foreign contribution and no expenditure in foreign country. लोगों ने गलत भरने के बाद, और अभी भी जो भरे हैं 90% गलत है, आते ही कुछ नहीं. कितना बड़ा 10B है, इतनी इंफॉर्मेशन तो आप निकाल ही नहीं सकते जो डाली गई. एक जेंटलमैन है चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं नाम नहीं लूंगा, वो बन गए IRS, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया हमारा, और वो बना दिया फॉर्म 10B. ही पिक्ड अप सेक्शन एंड हैव रीप्रोड्यूस एवरीथिंग इन फॉर्म 10B. ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो वहां पर नहीं मांगी गई है. मैंने उनको बोला सर, लो पहली बार आया 10B 10BB, और उसमें सबने गलती कर दी है. किसी ने 10B भरना था 10BB भर दिया. समवेयर यू हैड टू फाइल 10BB, यू हैव फाइल्ड 10B. एक कंडीशन तो उन्होंने मेरी मान ली, इफ somebody has filed a 10B instead of 10BB, क्योंकि 10B बड़ा है तो we may allow them to do it. लेकिन अब सब कुछ चेंज हो गया. फॉर्म अब सर्कुलर नंबर 2 डेटेड 5th of March 2024, अभी अभी आया सर्कुलर. बेनिफिट हैज बीन गिवन टू यू दैट इफ यू हैव फाइल्ड रॉन्ग ऑडिट रिपोर्ट, सपोज यू हैव फाइल्ड इन 10B, you are supposed to file 10BB, or the other way around, you were supposed to file 10B, you have filed 10BB. Kindly file again, and you have been given 31st March is the last date to rectify that report. कर दीजिए, नहीं करेंगे तो फिर आपको exemption की प्रॉब्लम आ जाए. So if you check up your thing, if 10B has been filed but you were supposed to file 10BB, kindly file 10BB by 31st March. On the other hand, if you have filed 10BB but you were supposed to file 10B, kindly file 10B. ये बहुत जरूरी है, नहीं तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. प्लीज एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. और 31 मार्च आ गई है, रेक्टिफाइड पोर्टल खोल दिया गया है, नहीं तो पोर्टल तो बंद था. इट हैज बीन आफ्टर 31st December देयर इज नो पोर्टल, बट नाउ दे हैव ओपन्ड द पोर्टल टू रेक्टिफाई एंड फाइल 10B और 10BB एज द केस में बी. अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्होंने कहा था डोनेशन टू एनी अदर ट्रस्ट. आप डोनेशन दे सकते हैं, अमाउंट पेड और क्रेडिट टू एनी अदर ट्रस्ट विल बी अलाउड एज डिडक्शन टू द एक्सटेंट ऑफ 85% ऑफ द अमाउंट सो पेड. याद कीजिए, उन्होंने कहा था अगर 1 लाख की डोनेशन दूसरे ट्रस्ट को देंगे, हम उसकी एप्लीकेशन 85,000 मानेंगे. 1 करोड़ की देंगे तो 85 लाख मानेंगे. मैं गया था डिपार्टमेंट, मैंने कहा ये क्या लॉ बनाया है. कहते क्या है. मैं कहा आप 85 लाख कह रहे हैं 1 करोड़ के बदले, और 15 लाख रुपया तो एक्यूमुलेट तो करा ही नहीं मैंने तो डोनेट 1 करोड़ दे दी. तो दैट मीन्स यू विल लायबल, आई विल बी लायबल टू पे टैक्स ऑन दैट 15 लाख. कहते हमारी इंटेंशन नहीं. मैं फिर इंटेंशन नहीं है तो लॉ क्या बनाया है. अब लॉ को पढ़िए जरा, क्या इंटेंशन है. वहां लिखा है, अगर सेक्शन 11 में जाइए तो लिखा है that where the total income, where the receipt includes any income property held under a trust shall be exempt to the extent
such income is applied for charitable purposes in India, and if there is any amount set apart, please note the word, if there is any amount set apart or accumulated, so much of the amount set apart accumulated which does not exceed 15% of the income. अगर आप accumulate करेंगे तो 15% तक कर सकते हैं, 15 से ज़्यादा नहीं कर सकते। यही लिखा था। मैंने कहा जब मैंने 1 करोड़ दे दिया तो मैंने accumulate कहाँ किया? 85% तो मैंने दे दिया और 15 लाख के ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि आई हैव नॉट एक्यूमुलेटेड, कि हमारी इंटेंशन नहीं है। लॉ तो पढ़िए, लॉ में तो ये लिखा है। अच्छा, फिर हम कोशिश करते हैं क्लैरिफिकेशन देंगे। सारा साल नहीं दी है, 6 मार्च को क्लैरिफिकेशन दी है, क्योंकि टाइम आ गया है दूसरों को डोनेट करने का। हाँ, समझ में आ गया। 6th March, circular number 3 has been given to explain to you that there was no intention, लेकिन लॉ तो कहता है पर ये बेनिफिशियल सर्कुलर तो आ ही सकता है। अब क्या किया है, होता क्या था, लेट मी टेल यू व्हाट यूज्ड टू हैपन। सपोज आई हैव रिसीव्ड 1 करोड़, चलिए लेट्स से 10 करोड़, फिगर ज्यादा, 10 करोड़ मेरी ग्रॉस रिसीट है। 15% में एक्यूमुलेट कर लेता था, कितना, 1.5 करोड़, बाकी 8.5 करोड़ बचा ना। मैं उस 8.5 करोड़ में से 4 करोड़ पे डोनेशन दे देता हूं, तो मैं 4 का 4 एप्लीकेशन मान लेता था। 15 तो अलग कर दिया और 4 को एप्लीकेशन मान के बाकी 4.5 खर्च करता था। वो कहता है ये डबल एडवांटेज ले गए आप, क्योंकि आपने 15% टोटल का ले लिया और फिर बाकी आपने डोनेट कर दिया, और वो फिर जब उसके पास आता है वो भी 15% ले लेता है। बात को समझे ना, अगर उसके बाद 4 करोड़ आया तो वो भी 15% एक्यूमुलेट करेगा और बाकी डोनेट कर देगा या बाकी खर्च कर देगा और नया पैसा डोनेट कर देगा। आइडिया तो ठीक था, लेकिन लैंग्वेज बहुत गलत लिखी कि उनका पर्पस था, देखिए अब आप 10 करोड़ है तो 8 करोड़ 50 लाख खर्च करना है, 1.5 करोड़ रुपया एक्यूमुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन रुकिए, उस 8 करोड़ 50 लाख में अगर आपने 4 करोड़ डोनेट किया है तो हम एप्लीकेशन 85% मानेंगे, क्योंकि 15 तो आप ऊपर ले चुके हो, डबल थोड़ी ले लोगे, आप डबल नहीं ले सकते। सो प्लीज नोट, अब वो डीम्ड एक्यूमुलेशन माना गया। अगर आपने 4 करोड़ दे दिया तो डिडक्शन मिलेगी 85% की, 85%, 3 करोड़ 40 लाख, पर आपने तो 4 दे दिया तो 60 तो है नहीं, कहता आप मान लेना 60 का 15% हो गया, आपको डबल बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप बात को समझे, इज इट क्लियर? नहीं तो समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, लोग कल मिसयूज कर रहे थे। 10 करोड़ आया, 5 करोड़ डोनेट कर दिया तो 5 का एप्लीकेशन मान लिया, लेकिन पहले 10 करोड़ में 15% ले चुके हैं, 1.5 करोड़ एक्यूमुलेट कर दिया, तो 5 और 1, 1.5, 6.5, 3.5 खर्च कर दिया। आया ना, वो 5 करोड़ जिसको मिला उसे भी 15% एक्यूमुलेट कर दिया, तो डबल एक्यूमुलेशन हो रहा था। अब इन्होंने कहा है कि आप जितना डोनेट करेंगे वो एप्लीकेशन 85 माना जाएगा, बट इट डज नॉट मीन कि बैलेंस 15% टैक्सेबल है। इट डज नॉट मीन बैलेंस 55, इट मीन्स दैट यू हैव अप्लाइड ओनली 85% और 15% जो है वो समझो एक्यूमुलेट हो गया या डीम्ड एप्लीकेशन हो गया, लेकिन आपकी एप्लीकेशन टोटल का 85% ही लेना है, डबल नहीं लेना उसको। ये क्लियर हुआ सर? और नहीं है तो अभी भी पूछे, मैं एग्जाम्पल और भी दे सकता हूँ, बट इज इट क्लियर कि अब सर्कुलर नंबर 3 डेटेड 6th March 2024 has clarified that whatever you donate, we will allow you 85%, no doubt, but that amount of 15%, वो वाला आप डबल डिडक्शन नहीं लेंगे, हम उसको 1 करोड़ मान के 85 एप्लीकेशन मानेंगे, और 15 आपने एक्यूमुलेट नहीं किया है, हम कहेंगे हो गया छोड़ दो, तो बाकी का 15% ले, बाकी का 15, इसका नहीं लेंगे। ये क्लियर हुआ सर? हाँ जी। सर देखिए बड़ा सिंपल है, आपको 15% टोटल का नहीं लेना है। अगर टोटल आपकी रिसीट 10 करोड़ है तो 10 का 15% तो 1.5 करोड़ होता है। वो कहता नहीं, इसमें से 4 करोड़ आपने दे दिया तो बाकी 6 करोड़ का 15% मिलेगा। बात को समझ में आया? और बाकी 4 का 15% गया। अब क्लियर हुआ? क्लियर हो गया?
क्योंकि आप डबल लेते थे, 10 का 15 ले लेते थे, फिर 4 को पूरा एप्लीकेशन मान लेते थे। क्लियर हुआ ना? ये लैंग्वेज गलत थी, करा के आया हूं, नहीं तो मुश्किल पड़ जाती 15% की। तो 2 चीजें उन्होंने मेरे कहने पे चेंज की, लेकिन जो चेंज नहीं की वो आता है 115 BBI। सबसे खतरनाक सेक्शन जो आया है वो 115 BBI आया है। एक ऑलरेडी खतरनाक था 115 TD, वो तो पहले ही TD तो खतरनाक है ना ये TD क्या कहता था? इफ यू आर मर्जिंग विद एनी अदर हु डज नॉट हैव ए सेक्शन 12A रजिस्ट्रेशन, तो हम उसको टैक्स लगा देंगे। या आप कन्वर्ट कर ले अपने आप को इन ए मैनर दैट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर रिडक्शन अंडर एग्जेम्पशन अंडर 12A, हम कर, और आपने डिसोल्यूशन कर दिया ट्रस्ट को, तो सारा का सारा पैसा दूसरे ट्रस्ट को डोनेट कीजिए, नहीं तो आपको टैक्स लगा देंगे। ये 115 TD में। और आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई, सपोज करो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई, तो आपका पूरा का पूरा टैक्स लगा देंगे। किसमें? फेयर मार्केट वैल्यू, एक्रीडिटेड इनकम। एक्रीडिटेड इनकम को कहा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट माइनस लायबिलिटी, इतना जितना भी आपका है उस पर टैक्स 30% लग जाएगा। होता क्या था? रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई, अब क्या करें? रजिस्ट्रेशन दे ही नहीं रहे। वो कहते हैं आज तक जितनी एग्जेम्पशन ली है इन्हीं में वो विड्रॉ हो गई। कैसे विड्रॉ करी? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स माइनस लायबिलिटी पे 30% टैक्स दे दो। इसे कहते हैं 115 TD। जरा ध्यान से सुनना। मेरे पास एक आया क्लाइंट, सर मेरे पास 3 कॉलेज है, मैं एक कॉलेज बंद करना चाहता हूं, कर दीजिए। मैंने कहा टैक्स लगेगा 150 TD में। कहता दे दूंगा। क्या होगा? एसेट माइनस लायबिलिटी, आज तक का टैक्स दे देता हूं। मैंने उसके बाद क्या कहता, फिर कॉलेज तो मेरा हो जाएगा। मैं कहता दोबारा मत कहना तुम्हारा हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। इवन आफ्टर पेइंग टैक्स द मनी बिलोंग्स टू पब्लिक एट लार्ज। वो आपको दूसरे को डोनेट देना पड़ेगा, आप उसको नहीं रख सकते। Because there is a irrevocable trust where money has been donated to you for the benefit of public at large. ये सोच लो मैं घर ले जाऊंगा 30% देके, वो इनकम टैक्स वाला कहता है तेरे से 30% ले लूंगा, लेकिन लॉ कहता है वो पैसा तेरा नहीं है। तो कहता है मेरा कॉलेज, मेरे नाम का कॉलेज, तेरा कुछ नहीं है, तेरा कुछ नहीं है, सब पब्लिक का है। ये बात बता दूं, ये रूल है कि आप या तो डोनेट कर दीजिए, नहीं तो प्रेसिडेंट ऑफ चैरिटी कमिश्नर सारे पैसे ले जाएगा। ये लॉ है, इट्स ऑफ द लैंड। ये मत समझना कि कॉलेज का टैक्स दे दिया 30% 115 TD में तो हमारा कॉलेज हो गया, आपका नहीं है। इट इज फॉर पब्लिक एट लार्ज। ये समझ में आया? अब बेड़ा गर्क क्या किया इन्होंने? एक बहुत बड़ा बेड़ा गर्क किया कि उस पर लिख दिया सेक्शन 115 TD सब सेक्शन 3 में एक क्लॉज ऐड कर दी है। आपको याद है, यू हैड टू अप्लाई इफ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यू आर सपोज टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर फॉर्म नंबर 10A, रेगुलर रजिस्ट्रेशन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी 5 साल के लिए। ये मैं बताता हूँ क्या हुआ। अब गलती तो मैंने ही करवाई, तो मैं क्या कर सकता हूँ। गए थे ईद मनाने, रोजे गले पड़ गए। सुनिए क्या हुआ। जब हम लॉ बना रहे थे, मैंने कहा देखिए सर, ये जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यू आर रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अंडर 11-12 एंड यू रिक्वायर अप्रूवल अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 23C। वहाँ अप्रूवल बोलते हैं या रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। मैंने कहा हमारे पास रजिस्ट्रेशन है, वी आर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, but we do not have a certificate of registration lying with us. Either 30 years back we were granted registration, permanent registration है, और it has been lost, it has been destroyed, और हमारे या फट गया है, हमारे पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन नंबर है, हर नंबर से रिटर्न भर रहे हैं। लेकिन जब स्क्रूटनी आती है तो AO ask for certificate of registration, which we do not have. We have visited several times the department, even the department does not have the copy of that registration. तो एक काम कीजिए, let us allow everyone to apply online by giving the registration number or approval number. Once they apply, without asking any question, allot them an online registration which will be a permanent record. अब आपका ये खोएगा नहीं,
और परमानेंट रिकॉर्ड हो जाएगा, और अब आपका ऑनलाइन है तो आपको मांगना भी नहीं पड़ेगा और हमें संभालना भी नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छा आइडिया है। मैंने कहा ना, गए थे ईद मनाने, रोजे गले पड़ गए। अगर वो अप्लाई किया, आपने किया था ना, और नवंबर तक अलाउड हो गया था 22, लास्ट डेट 30 नवंबर 22 थी, आपने अप्लाई कर दिया, ऑटोमेटिक आपको रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन मिल गया फॉर ए पीरियड ऑफ, यही तो मर गए। पहले परमानेंट था, अब क्या कर दिया, ओनली फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर, एंड एवरी 5 ईयर विद इन 6 मंथ प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर यू विल हैव टू अप्लाई फॉर रिन्यूअल अगेन। जो मैंने नहीं कहा था, मैंने तो एक बार कहा था कि जान छुड़वा लो, अब तो हर 5 साल बाद जान मारनी पड़ेगी और पूरी डिटेलें 5 साल की देनी। इस तरह प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन था। यू अप्लाइड फॉर ए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इज ऑटोमेटिक, कोई सवाल नहीं है था, विद इन 1 मंथ यू गेट ए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। बट द लॉ वॉज दैट वंस यू हैव कमेंस्ड द बिजनेस, you have to apply within 6 months of the commencement of business for a regular registration and not a provisional registration. हाँ, अगर आपका प्रोविजनल चलता रहा, कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी नहीं होगी, तो आप इसको बाद में रेगुलर कर लेना, विद इन 6 मंथ 3 साल का मिलता था। अब लोगों ने क्या किया, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले लिया, कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी कर दी, लेकिन अप्लाई नहीं किया रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए, भूल गए, नहीं किया, वो तो गलत है। अब क्या करें, कहा गए तो उन्होंने 30 सितंबर 2023 तक आपको एक मौका दिया था एमनेस्टी का। इफ यू हैव कमिटेड एनी मिस्टेक, यू हैव नॉट आस्क्ड फॉर रिन्यूअल और यू हैव अप्लाइड, यू गॉट ए प्रोविजनल, काइंडली अप्लाई बाय 30 सितंबर फॉर रिन्यूअल ऑफ रेगुलर रजिस्ट्रेशन। इसके बाद हम नहीं देंगे। 30 सितंबर एमनेस्टी था, कईयों ने अप्लाई कर दिया, गलत कर दिया था, कईयों ने रेगुलर के बदले प्रोविजनल कर दिया, कईयों ने प्रोविजनल के बदले रेगुलर कर दिया, कईयों ने प्रोविजनल किया लेकिन 6 महीने में उसको रेगुलराइज नहीं किया, तो एक एमनेस्टी दी गई 30 सितंबर। अब कईयों ने किया ही नहीं है 30 सितंबर 23, ये अभी तो गया है। अब सेक्शन 115 TD सब सेक्शन 3 में डाल दिया कि अगर आपने रिन्यूअल नहीं कराया या आपने प्रोविजनल लिया, उसको रेगुलराइज नहीं किया, तो पूरी की पूरी इनकम टैक्स लगा देंगे अंदर 115 TD सब सेक्शन 3, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट माइनस लायबिलिटी पे 30% टैक्स। मर गया ना वो बेचारा, प्रोविजनल था, अब जितना भी है एग्जेम्पशन तो गई, उसको तो टैक्स देना पड़ेगा। बट आई कांट हेल्प इट, क्या क्या के थक गया था कि 30 अप्लाई कर दीजिए। अभी भी कईयों ने 30 सितंबर तक रिन्यूअल कराया ही नहीं, जो पुराना था कराया ही नहीं, और जो प्रोविजनल थे उनको 10AB फाइल करके फॉर्म अपना रेगुलराइज कराना था। नाउ क्या, जिसने प्रोविजनल को रेगुलराइज नहीं किया विद इन 6 months ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, he will not get any, the trust will not get any exemption, and they will have to pay tax under 115 TD subsection 3 on the entire amount of the value of the asset minus liability at the rate of 30%. और फिर भी चीज़ आपकी नहीं रही, वो तो सरकार की है। क्लियर हुआ सर ये पॉइंट? ये कईयों ने नहीं किया है, अब लॉ बदल चुका है। इफ़ यू आर ऑलरेडी न्यू वन एंड यू हैव ऑलरेडी कमेंस बिजनेस, आपको सारे फॉर्म फाइल करके, सारी डिटेल फाइल करके रजिस्ट्रेशन मिलेगा। बट इफ़ यू आर न्यू ट्रस्ट, यू हैव टू अप्लाई फॉर द न्यू प्रोविजनल सर्टिफिकेट, बट यू हैव to convert into a regular registration within 6 months of the commencement of your business. ये लॉ है सर, ये लॉ है, ये ध्यान रखिए, इसको नहीं चल करते, नहीं तो टैक्स लग जाएगा और पूरा का पूरा टैक्स लगेगा। ये क्लियर हुआ? कोई क्वेश्चन है यहाँ पर? हाँ हाँ जी, हाँ जी, एनी, मुझे कोई नजर नहीं आ रहा कौन सा बोल रहे। हाँ देखिए 119 में सब कंडोनेशन के लिए अलाउड है, वो 119 में जाइए, कंडोन कर सकते हैं, वो बात अलग है। लेकिन क्या कंडोन करेंगे, सब कुछ तो कर दिया, एमनेस्टी दे दी, अब भी कहते हो कंडोन कर दो, ये तो पॉसिबल नहीं है सर। लॉ पढ़ना हमारा फर्ज है, उन्होंने आपको दे दिया ये सेक्शन, ये जो सर्कुलर आया 2 और 3, अगर आप उसको नहीं पढ़ेंगे तो गलती उनकी नहीं है। द मिस्टेक इज नॉट देयर,
दे हैव गिवन ए बेनिफिशियल। अभी 2043BH के पीछे पड़े हुए। आप बताइए 43BH के लिए क्यों आप जनवरी तक में क्यों नहीं गए? पार्लियामेंट जब बैठी थी तब क्यों नहीं शोर मचाया? Why didn't you raise the question कि this is going to be a very draconian law? फरवरी का महीना आया, 45 दिन आने लग गए या 15 दिन आ गए मार्च में, तब शोर मचाया। सरकार करे क्या? लॉ बन चुका है, एक्ट को चेंज नहीं कर सकते। पार्लियामेंट बैठी नहीं है, और अगली पार्लियामेंट जब बैठेगी तब अगली गवर्नमेंट होगी तो मोदी, लेकिन कहना तो टेक्निकली नहीं है ना, टेक्निकली तो नहीं है ना, कह सकते कि उन्हीं की आएगी। तो क्या करें चेंज? के मैं गया 4 बार, कहते कैसे कर दे चेंज। मैंने कहा आप गलती तो हमारी है, नो डाउट। और फिर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवोकेट बड़े परेशान हैं। हम क्यों परेशान हो? परेशान हो वो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज वाले या जो बाल खरीद रहे हैं। हमें क्या तकलीफ पड़ी है उनके बारे में सोचने की? हम ही सोचते रहते हैं। वी कीप ऑन थिंकिंग अबाउट देम एंड दे डोंट बॉदर अबाउट अस। वो कभी आपको सही बात नहीं बताते जब तक एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट नहीं आई थी। समझ में आ गया? क्या बताते थे? मैंने कहा 90 लाख का तूने शेयर बेचे हैं, मेरे को तो डीमैट अकाउंट भी नहीं है। मैं कहा ये क्या है बता देना, डीमैट अकाउंट भी नहीं है। ओहो बेटे ने खोल दिया होगा, मुझे तो पता ही नहीं है, साइन तो तूने किए हैं। सर ये नहीं बताते थे। एक एक बैंक की डिटेल अब आती है ना, पहले बताते थे एक बैंक में, हाँ ठीक है, छुपा लेते थे हमसे। वो कभी नहीं बताएंगे। मुझे याद है, मैं कई बार बोल चुका हूं, 8 नवंबर को 2016 को मोदी जी ने अरेंज करके कहा मित्रों अब आप गए, डीमोनेटाइजेशन आया। 9 दिसंबर मेरे ऑफिस, 9 नवंबर मेरा ऑफिस भरा हुआ था। कोई कहता मेरे साथ 10 लाख है, कोई कहता 50 है, कोई कहता 1 करोड़ है, 10 करोड़, एक कहता 100 करोड़ है। मैंने कहा जब फीस मांगते थे कहते कुछ है ही नहीं हमारे पास, जहर खाने के पैसे नहीं है, ये बोलते थे ना, तो कहां से आए ये पैसे? तो ये क्लाइंट आपके फेवर में कोई नहीं है। सीए बोल रहा है विज्ञान भवन में और मेरे से सवाल पूछ रहा है, सर एक चेक इशू कर देते हैं और उसको कहेंगे जमा मत करा। सुना है ना आपने टीवी जो आया? अरे भैया क्या कह रहा है तू, मरवाएगा अपने आप को, तेरे को ये नहीं पता जमा नहीं कराए। मैंने कहा माइक्रो है, फोटो खींच के अपने फ्रेम में रखेगा, देखो मैंने चेक है और जमा नहीं कराया। मैंने कहा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास ज्यादा है आपसे ज्यादा, और नहीं तो सुधर जाओ, नहीं तो मोदी जी सुधार देंगे। पढ़ा ना मैंने बोला ना ये। मैंने कहा पीएमओ में भी चले गई ये वीडियो, सारे आईएएस में चले गई, चेयरमैन का फोन आया और कहा आया। जब पीएमओ में गई तो उन्होंने बोला सर ये वीडियो हमने वायरल ज्यादा कर दी है ताकि लोगों को पता लगे। मैं कहा फिर पद्मश्री दे दो मुझे, आपका काम तो किया है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि वक्त बदल गया है सर, ये गलत काम अब नहीं हो सकते। ये सोच के मत चलना कि यू विल बी एबल टू डू रॉन्ग। गलत काम नहीं करना है अब नहीं। तो ये कभी उसको ये नहीं पता नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में लिखा है जिस दिन चेक इशू करो उस दिन आपका बैलेंस होना चाहिए। और एक और जगह लिखा है कि अगर 3 या 4 दिन में चेक कैश नहीं हुआ तो फिर अगर 3 दिन में हो गया तो बैक डेट से माना जाएगा, नहीं तो उस डेट से माना जाएगा जब चेक कैश हुआ। कैसे हो सकता है? आपने 15 और 45 दिन में देना है, आप उसको कहेंगे चेक रोक ले, पॉसिबल ही नहीं। लेकिन पूछना है ना। मैंने कहा यार तू इतने सवाल क्यों पूछे? कहता सर मैं इलेक्शन लड़ना था। तो मैंने क्या हुआ कि तू बदनाम हो रहा है? कहता बदनाम हुए नाम तो हुआ। लोगों को पता तो लग गया कि मैं ये मैंने सवाल पूछा था, मेरी फोटो सब जगह आ रही है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं सर, हाथ जोड़ के विनती है कि वक्त बदल गया है, गलत काम करने में नुकसान होगा। अब 115 BBI में पहले क्या होता था, सपोज आपकी टोटल इनकम ग्रॉस रिसीट ट्रस्ट की 2 लाख है, 2.5 लाख पूरा माफ होता था, क्योंकि 2.5 लाख तक तो माफ ही था। अब वो नहीं है। 115 BBI कहता है मैक्सिमम आप 15% एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बाकी अगर आप करें 11(2) में तो बात अलग है, अदरवाइज सबके ऊपर टैक्स लगेगा, चाहे 1 रुपया भी हो। मतलब मेरे को अगर 2 लाख रुपया आया है, मैं मैक्सिमम 30,000 तो एक्यूमुलेट कर सकता हूँ, बाकी 170 पे मुझे टैक्स देना पड़ेगा। कहते सेलिब्रेट, नो, 150 BBI कहता है 30% टैक्स देना पड़ेगा। ये बदल गया। पहले टैक्स लगता था 164 सबसेक्शन 2 में, अब
खत्म हो गया। 115 BBI में सिर्फ 15% एक्यूमुलेट कीजिए, बाकी करना है तो 11.2 में जाइए, 11.2 है ना, या 9A में कह के कहो अगले साल खर्च करूंगा। अगर नहीं करेंगे, अगर और पति नहीं है, तो फिर बाकी जितना बैलेंस है आफ्टर 15% द एंटायर अमाउंट इज टैक्सेबल एट ए स्पेशल रेट ऑफ 30% प्लस सरचार्ज वगैरह। तो ये क्लियर कह दूं, अब कोई एग्जेम्पशन नहीं है ट्रस्टों को 2.5 लाख की या 3 लाख की। गया जमाना जब एग्जेम्पशन थी, अब नहीं। सेकंड पॉइंट, फॉर्म 9A देखिए, सेक्शन 10, हाँ बोलिए। किसी भी साल पुराना हो, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो हाँ? तो फिर ट्रस्ट क्या हुआ? फिर चैरिटेबल कहां से हो गया? अभी कर लिया नहीं, रजिस्ट्रेशन कैसे हो गया? आप ट्रस्ट में रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, मैं इनकम टैक्स के रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं। हाँ, तो हमें यही तो सबसे बड़ी मिस्टेक हमें है। हम कहते हैं हम तो रजिस्टर्ड सोसाइटी है, हम सेक्शन 8 कंपनी है, हम ट्रस्ट है, ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड है। भाई साहब, वो रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स के लिए नहीं है, वो रजिस्ट्रेशन तो चैरिटी के लिए आ गया। यू हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड, एंड इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड यू आर नॉट लायबल फॉर एनी एग्जेम्पशन फ्रॉम, सुन लीजिए, फ्रॉम 1/4/2017। अब सुनिए, अब जरा ध्यान से सुनना। 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 1 अप्रैल 2017 से आया है। क्या चीज? 56। हमारी कंट्री में 70% टेम्पल, गुरुद्वारा, मॉस्क, चर्च एक्सेट्रा रजिस्टर्ड ही नहीं कराया इनकम टैक्स में, रजिस्टर्ड ही नहीं है। जितनी भी रिसीट है ना, 100% टैक्सेबल विदाउट इवन ए सिंगल पेनी डिडक्शन। और मैं इतना शोर मचाता रहा जब ये लॉ आया था कि अप्लाई कर दीजिए रजिस्ट्रेशन का, और उसमें एक प्रोवाइजो दिया हुआ है कि पिछले केस नहीं खोलेंगे, लेकिन किसी ने बॉदर नहीं किया है। 56(2)(10) में लिखा है, अगर रजिस्ट्रेशन, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है और आपको डोनेशन मिली मोर देन 50,000 तो उस केस में तब माफ होगा, वो एक्सेप्शन में आएगा। अगर आपको डोनेशन मिली एंड यू आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर इनकम टैक्स, तो आपको 50,000 से ऊपर जो टोटल रिसीट है, 50,000 से कम है तो छोड़ देंगे, पूरी की पूरी पे टैक्स लगेगा, एंड नो डिडक्शन व्हाटसएवर इज अलाउड अंडर 56(2)(10). समझ में आया सर? ये लॉ तो बड़ा पुराना हो गया, 17 से आया हुआ है, और लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराई। बहुत साल में कहता रहा कि पुराने केस नहीं खोलेंगे, अब तो वो प्रोवाइजो भी हटा दिया गया है। अब तो आपको मुश्किल पड़ गई। फुल अमाउंट, क्योंकि मंदिर में जो जितना दान आता है वो तो दान ही है, और क्या है, उसकी कौन सी इनकम है, और वो पूरा का पूरा टैक्सेबल है। अब फिर सुनना चाहते हैं ये कहाँ से क्या हुआ था, क्यों आया ये? टाइम होता नहीं है, मेरे को बस स्टोरियां सुनानी पड़ती है। सर 11098 में गिफ्ट टैक्स हटा दिया गया था, रिमेंबर? पहले तो वेल्थ टैक्स बाद में हटा, लेकिन गिफ्ट टैक्स 11098 को हट गया था। क्या स्टेटमेंट दी थी? यू हैव ऑलरेडी पेड टैक्स ऑन दैट इनकम, एंड इफ यू वांट टू गिव दैट मनी टू एनीवन, व्हाई शुड वी बॉदर? क्योंकि टैक्सेबल इनकम हो चुकी है। उनको क्या पता था कि यह रामलाल सुलेमान को गिफ्ट दे रहा है, सलमा भी कृष्ण कुमार को गिफ्ट देने लग गई। नेशनल इंटीग्रेशन, हिंदू मुस्लिम भाई भाई आपस में गिफ्ट। हमारी कंट्री में गिफ्ट दी थोड़ी जाती है, ली जाती है। और एक हमारे महान नेता तो सारे ने गिफ्ट ली, एक महान नेता थे, उन्होंने अपने बर्थडे पर 4 करोड़ रुपए की गिफ्टें ले ली, 4 करोड़ की गिफ्टें ले ली। सर्वे हुआ, उनसे पूछा गया ये 4 करोड़ की गिफ्टें कहां से आई? तो कहा मेरे फ्रेंड, मेरे रिलेटिव, मेरे इतने ज़्यादा फैंस हैं, उन्होंने मुझे गिफ्ट दी है। कहते ठीक है दी है, सोर्स तो बताइए। कहते सोर्स मेरा सीए बताएगा। मैंने कहा ठीक है। सीए ने सबको फ़ोन कर दिया, 100, 200, 400 आदमी जिनको, कि ये अब बात आपने कहनी है जब भी कोई आपको पूछने आएगा।
100 लोगों के पास गए, आपने गिफ्ट दी है? हाँ दी है। किसको दी है? इस नेता को दी। क्यों दी है? सर हम उसके फैन हैं, हम उनके सब कुछ है, हमने दी है। आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? कहता है एग्रीकल्चर इनकम। आप कुछ कर नहीं सकते थे। फिर दूसरे ग्रुप के पास गए, आपने गिफ्ट दी है? हाँ दी है। आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? कहता है एग्रीकल्चर इनकम। कहता है आपके पास तो लैंड ही नहीं है। कहता है पटे पे ले रखी है। तो समझ में आया ना, लीज पे ले रखी है, पटा करा रखा है। तीसरे ग्रुप के पास गए, आपने गिफ्ट दी है? हाँ दी है। कहां से दिया है? कहता लोन लेके गिफ्ट दी है। और सुप्रीम कोर्ट से पास हो गया। सुप्रीम कोर्ट से पास हो गया ये कि हाँ ठीक है, गिफ्ट है, ठीक है, उन्होंने कह दिया दी है तो दी। अब नेता को तो बदल नहीं सकते थे, लॉ को बदला गया था। लॉ में बोला गया था यू कैन नॉट टेक गिफ्ट फॉर मोर देन 25,000 रुपीज पर पर्सन। 25,000 का आया था, वो बाद में बदला है, 25,000 का आया। 25,000 से ऊपर गिफ्ट नहीं दे सकते, सेक्शन 56(2)(वी) में कहा 25 से नहीं ले। अगले बार बर्थडे आया, उसे पूछा अब क्या करूं? कहता टीवी पे बोल दो मेरे बर्थडे के ऊपर कोई 25,000 से ज्यादा गिफ्ट नहीं देगा, मैंने लेना ही नहीं 25 से ज्यादा। और 3 करोड़ रुपया ले लिया। अब नेता तो फिर भी नहीं बदलेगा, लॉ को फिर बदलना पड़ा। फिर 56(2)(7) आया, यू कैनॉट टेक ए गिफ्ट फॉर वन और मोर देन वन पर्सन एक्सीडिंग ₹50,000 इन एग्रीगेट। 50,000 से ऊपर गिफ्ट नहीं ले सकते। नहीं कहा 50 से नहीं। आप क्या करूं? कहते कुछ नहीं, बोल दो मैंने कोई गिफ्ट मनी के फॉर्म में नहीं लेनी, कोई चेक नहीं लेना, काइंड में जो मर्जी दे दो, अपनी ज्वेलरी दे दो, शेयर दे दो, कुछ भी कर दो, कैश को हाथ नहीं लगाना है। टीवी पे बोल दिया। सर 4 करोड़ रुपए का क्राउन पहनाया गया ऑन द डेट ऑफ बर्थडे, स्टडेड विद रूबी, सफायर, डायमंड, पर्ल्स, सब कुछ बना के 4 करोड़ का है। अब फिर भी क्लॉर नेता को बदलना नहीं रहा, फिर चेंज किया लॉ को कि अब आप गिफ्ट नहीं ले सकते अगर ये वाली आइटम है। इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी? शेयर्स एंड सिक्योरिटीज था, ज्वेलरी, शेयर एंड सिक्योरिटीज, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर, वर्क ऑफ आर्ट। बर्थडे आ गया, सीए से पूछा आप क्या करूं? अब तो ये चीजें ले नहीं सकते। कहते सर पढ़ के बताता हूं, मैं पढ़ के बताता हूं। क्या? कहते हैं एक डेफिनेशन है ज्वेलरी की, सेक्शन 2/14 में वहां लिखा ज्वेलरी इंक्लूड्स ऑर्नामेंट मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, प्रेश और एनी अदर, सब कुछ ऑर्नामेंट्स लिखा है, और एनी प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन। उन्होंने कहा ऑर्नामेंट्स है सर, बुलियन नहीं लिखा है, बुलियन की गिफ्ट ले लो। बुलियन की गिफ्ट ले ली, ला फिर बुलियन भी आ गया। अब क्या करें? अब फिर लॉ आया, फिर आ गया केस। कहते जब तो सब कुछ कवर हो गया। वैसे तो कवर नहीं हुआ है, आप मर्सिडीज कार गिफ्ट में ले लो, कोई मना नहीं है, कि वहां व्हीकल है ही नहीं, मर्सिडीज कार गिफ्ट में ले लो, कुछ नहीं कोई कहेगा। तो करें नहीं, फिर भी क्या हुआ? उन्हें कहा आप ऐसे काम करो, क्योंकि 56(2)(7) इंडिविजुअल और एचयूएफ को डील करता है, और इंडिविजुअल एचयूएफ गिफ्ट आप ये करो, एओपी वो बना लो, ट्रस्ट बना लो, प्राइवेट ट्रस्ट, और ट्रस्ट के नाम गिफ्ट ले लो। तो ट्रस्ट के नाम गिफ्ट ले ली। बेनिफिशियरी कौन? वो नेताजी। ट्रस्ट के नाम गिफ्ट ले ली। तब सेक्शन 56(2)(10) आया था। 10 में लिखा है वेयर एनी पर्सन और पर्सन रिसीव एनी गिफ्ट फ्रॉम एनी अदर पर्सन और पर्सन, एनी अदर पर्सन, अब इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं है, एनी अदर पर्सन मीन्स इंडिविजुअल एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओ, कोई भी गिफ्ट लेगा, अगर वो मोर देन 50,000 होगी तो टैक्सेबल होगी, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी तो टैक्सेबल होगी, अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी तो टैक्सेबल होगी। अब प्रॉब्लम ये आई कि अब तो वो सारे कवर हो गए, ट्रस्ट भी, एओपी तो ट्रस्ट भी होते हैं, तो इसलिए अब जितने भी मंदिर, गुरुद्वारे या कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको पूरे के पूरे अमाउंट पे टैक्स लगना है विदाउट एनी डिडक्शन। यहाँ जितने भी बैठे हैं मंदिरों वाले, वो सबको पता है कि वो रजिस्टर्ड नहीं है। वो जब 10 लाख रुपए जमा करा देते हैं सेविंग बैंक में, तो उस वक्त उसको नोटिस आ जाता है। नहीं तो अभी सेंटिमेंटल चीज़ें हैं, धर्म का मामला है तो ज़्यादा छेड़ते नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब जब तक कोई रजिस्टर्ड नहीं है, कोई भी अमाउंट रिसीव करेगा मोर देन 50,000,
or immovable property or a movable property, the entire amount is taxable under section 56 subsection 2 clause 10 without any deduction. समझ में आ गया सर? खर्चा नहीं मिलेगा. पहले भी मेरे को यहाँ किसी ने पूछा था कि खर्चा कितना मिलेगा. एक पैसे का खर्चा नहीं मिलेगा. I request to please stand and ask the question so that it's audible to everyone. वो चाहते हैं And कि औरों please को भी pass पता on the लगे mic. क्वेश्चन क्या है. हाँ, क्या आंसर रिस्टोर? हाँ हाँ. Can one go for this exemption even for the 15%? देखिए उसको डोनेशन आया है. किसको आया है? ट्रस्ट को. Trust को. पहला पॉइंट, इट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर 11-12 और 1023C. अगर रजिस्टर्ड ट्रस्ट को कोई डोनेशन आया है, चाहे कैश में चाहे काइंड में, लॉ ने ये कह दिया ये एग्जेम्प्ट है. एग्जेम्प्ट का मतलब 56(2)(10 नहीं लगेगा, लेकिन उसकी रिसीट आएगी तो एप्लीकेशन तो करना पड़ेगा उसको. अरे रिसीट है लेकिन एप्लीकेशन तो करना है 85-15. करिए ना 85-15 तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा. If one could not do this 85%, I mean, so can आपके one, पास 11-2 है ना. अगर आप 85 नहीं करते तो बाकी पैसा 11-2 में जमा करा दीजिए फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर. कीप इट अंडर 11-5 या लिख दीजिए अगर है ना. हाँ बोलिए. I mean, these two options are available. Yes. But suppose if I don't want to go for these two, is it open to me under 56(2)(10)? सर इसको 56(2)(10 में नहीं आएगा अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो. अच्छा. अगर रजिस्टर्ड है तो नहीं आएगा, लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट में तो 11 में खर्च करा आपने, रिसीट आ गई है 11 में. अब आप उसको एग्जेम्प्ट खर्च नहीं कर रहे तो कितना खर्च करना है? 85. अगर आपने नहीं किया तो वैक्यूम टैक्स दो. अभी तो बताया 115 BBI उस टैक्स लग जाएगा. इवन इफ इट इज नॉट कवर्ड अंडर 56(2)(10), 56(2)(10) में तब कवर होगा जब रजिस्टर्ड नहीं है. अगर रजिस्टर्ड है तो 56(2)(10) नहीं लगेगा. तब क्या लगेगा? 115 BBI, क्योंकि आपको 85 खर्च करना था, आपने 85 से कम किया है, तो बाकी पे या तो टैक्स दे दो या 11(2) में चले जाओ. 11(2) में चले जाओ, आपको मिल जाएगा. एक 9A भी है, वो हो जाएगा. क्लियर? क्लियर? हाँ. Then after they have not filed any return, IT return, and it has yearly income above 40 lakh. Right now they don't have any exemption. तो टैक्स लगेगा. नहीं एग्जेम्पशन तो 115 TD में तो पहले टैक्स लगाओ उसको, और बाकी तो उसको रेगुलर आ रही है उसमें 56(2)(10) लगाओ. आप बात को समझिए. जब उसने रजिस्ट्रेशन नहीं ली तो जितना भी पैसा उसके पास है मार्केट वैल्यू लेकर लाइबिलिटीज लेस करके उस पर 30% टैक्स लगेगा. और आगे से वो इनकम आ रही है, अगर वो 56(2)(10) में नहीं है क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है तो पूरी की पूरी इनकम टैक्सेबल है. अगर वो डोनेशन है तो, अगर वो डोनेशन है तो पूरी की पूरी इनकम टैक्सेबल है. अब चल रहा है, ये मत कहना चल गया. जब पता लगेगा तो सब केस पूछले खोल देंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये बिल्कुल नहीं अलाउड है. वो जमाने चले गए जिन जमानों में ये काम होता था. अब उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन है. दे नो मच मोर देन व्हाट यू नो अबाउट योरसेल्फ. What happened? All trustees died before 2011. So it was just working only, but no trustee was ट्रस्ट existing. तो भी चल रहा है ना, Trust is पैसे आ रहे हैं ना, तो पूरा का पूरा टैक्सेबल है भाई. ट्रस्ट तो पूरा टैक्सेबल है. और आपको 56(2)(10) में तो 17 से टैक्सेबल है. लेकिन उससे पहले भी तो टैक्सेबल था. Nobody was taking care of it. सर इसके मेरी जिम्मेवारी नहीं है. आप भी कौन सा टेक केयर कर रहे हैं? आप भी बताओ ना, उनको बताइए ये गलत है. ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता. जब तक निकल गया तो निकल गया, जब पकड़ा जाएगा तो 100 सुनार की एक लोहार की. हाँ जी बोलिए. Sir, existing trust which has taken provisional registration under section How can 80G. existing trust take a provisional registration? 80G. 80G. Yeah. So if, what is the condition for renewal? नहीं, दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं आप. नहीं, पहले तो पहले 80 तो है. 80G पुराना था, नहीं था. नया लिया, प्रोस्पेक्टिव है. और वो रूल है कि 80G में भी जब प्रोविजनल मिला
विद इन 6 months ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस आपको रेगुलर एटीजी लेना था। हाँ, तो अगर वो नहीं तो लिया तो टैक्स लगेगा। नहीं लिया क्योंकि उसमें तो एग्जेम्पशन भी नहीं दी कि आप 31 सितंबर तक उसको फाइल कर दो, उसमें नहीं है एटीजी की एग्जेम्पशन। एटीजी प्रोस्पेक्टिव है, एटीजी पिछले डेट का नहीं देते। और एटीजी जब आपने लिया तो ये सोच के लेना कि अगर वो प्रोविजनल मिला है तो 6 महीने ऑफ कमेंसमेंट में आपको अप्लाई करना नहीं था, नहीं किया तो आपको शुरू से टैक्स लग जाएगा। वो तो जिन लोगों ने बेनिफिट लिया उसको लगेगा। उसको लगेगा, आपको तो अप्लाई करना है ना, जिसने डोनेशन दी उसको लगेगा। अब जरा सुनते रहना एक बात मैंने, आजकल एटीजी करना क्या है? नहीं किस लिए चाहिए एटीजी आपको, ये तो बता दो मुझे, बताओ तो सही। लोगों को चाहिए सर। किस लिए चाहिए बताओ ना, आपको एडवाइस करना है। नहीं फर्क मेरे पास आए, मैंने कहा कितनी डोनेशन है, कहता 80 करोड़। मैं कहा एटीजी के लिए कितनी आती है, कहता 10 लाख। मैं पागल हो गया है, दुनिया में एक एक चीज देखेंगे एटीजी की, 10BD2 फॉर्म भरना पड़ेगा और एटीजी में नई रिजीम में एटीजी है ही नहीं। अगर आप कंपनी है क्या एटीजी मिलता है कंपनी को? क्या आप इंडिविजुअल है और आप नई रिजीम में क्या मिलेगा? और आपको बता दूं अगले साल सारी नई रिजीम हो जाएगी, ओल्ड खत्म। समझ में आया? ओल्ड है ही नहीं, मोदी जी को आने दो, आज खत्म हो गई। सर सर हाँ जी, चैरिटी की प्रैक्टिस क्यों नहीं है? ऐसे किसी ने कह दिया सबसे डिफिकल्टी चैरिटी के चैप्टर। मैं यही बोलता हूं, चैरिटी का अगर आप ऑडिट करते हैं या काम करते हैं तो चैरिटी मत करना। तो जमाने चले गए फ्री वाले, 10 गुना ज्यादा फीस ले रहे जो नॉर्मल से लेते। वो कमा रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे। जेन्युइन ट्रस्टी छोड़ दो, ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। ट्रस्टी मर्सिडीज गाड़ी लेके घूम रहे हैं और हमें कहते हैं फीस क्या, चैरिटी का काम करते हैं। अरे चैरिटी वैरिटी कुछ नहीं सर, चैरिटी की प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी लगेगी आपको, पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। सर चैरिटेबल ट्रस्ट रनिंग एजुकेशनल एक्टिविटी तो उसका विच सेक्शन में कवर्ड है? 1023C? हाँ 1023C तो 6 1 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ से ऊपर? 5 करोड़ से अंदर है सर। अब फिर क्या करूं वहां तो पे? कोई रजिस्ट्रेशन कुछ जरूरी नहीं? कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई ऑडिट नहीं, कोई 85% नहीं, बट रिटर्न ऑफ इनकम कंपलसरी फाइल करनी। ओके प्लीज दोबारा सुन लीजिए, रिटर्न ऑफ इनकम कंपलसरी फाइल करनी है, नहीं तो एग्जेम्पशन नहीं देगी। ओके खत्म। कोई कुछ नहीं करना 5 करोड़ से नीचे, लेकिन रिटर्न ऑफ इनकम मैंडेटरी है। हाँ जी, अमेंडमेंट देखो, इसको साथ में ही खत्म करना है तो बेटर रहेगा। बाद में खाने का भूख लग जाती है या धीरज शाह जी आ जाएंगे, उन्होंने लेना है तो टाइम नहीं मिलता है, खत्म कर दी। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? एटीजी के लिए कोई बेनिफिट नहीं दिया है, जब अप्लाई करेंगे उसके बाद मिलेगा। उसके लिए बेनिफिट दे दिया था कि आपको 30 सितंबर तक अप्लाई कर दीजिए, ये पहला बता दिया। और एटीजी पता नहीं क्यों पीछे पड़े हुए हैं, अब एटीजी की वैल्यू खत्म होने जा रही है। वो कोई बोला CISR के लिए चाहिए, भाई जिस दिन ये हटेगा वहां पर भी वो हटा देंगे एटीजी, CISR के। बाकी और कोई एटीजी नहीं मिलना है, और एटीजी के पीछे मत पड़ो। इलेक्टोरल बॉन्ड भी गए, एटीजीजी भी जीजीसी भी खत्म हो गया। समझ में आ गया आपको? कोई पर्पस ही नहीं है एटीजी का ना। चलिए चलिए आगे, मैं आगे बढ़। हाँ जी, पैसे आए नहीं, पैसे आने शुरू हो गए सर। 5,000 पे डोनेशन आया है, उसके बाद कुछ नहीं किया। तो ठीक है 5,000 पे जब जिस आया तो आपको उसके बाद 15% छोड़ के आपको पैसे क्यों आए? आपको पैसे आने के लिए 50,000 तक अलाउड है, क्योंकि 50,000 से ऊपर नहीं है तो आप कर लो। लेकिन कुछ उसके बाद खर्च किया तो बैंक में ही रख दिया, कहीं तो खर्च किया, तो वो हो गया ना कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सर डिफाइन नहीं है। कमेंसमेंट होता है जब आपने डोनेशन लेना शुरू कर दिया और उसको खर्च करना शुरू कर दिया। और अगर बैंक में रख दिया तो इंटरेस्ट आया, वो भी तो वही है। आपको एक्टिविटी तो कर दी ना आपने शुरू, पहले ट्रस्ट बनाया तब नहीं, जब उसके बाद पैसे लेने शुरू करे तो काम हो गया शुरू। क्लियर? 6 months फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। हम तो लास्ट डे को देखेंगे
तो 4 महीने बाद कर दो अप्लाई, 3 महीने बाद कर दो। नहीं, डेट बताओ 5 जनवरी से 6 महीने कब खत्म होते हैं, लास्ट डे को अप्लाई करेंगे। ये कौन सा सिस्टम है सर, छोड़ दो यार, मत करो ऐसा काम। चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं 115 BBI में कहा था 30% टैक्स लगता है। अभी एक एग्जाम्पल दी है, अगर आपने 11-2 में पैसे जमा कराए, समझ में है ना, मोर देन 15% यू हैव डिपॉजिटेड इन 11-2, और उसको क्या रखना है, इन ए मोड गिवन अंडर 11-5, एम आई राइट सर? उस पैसे को जोड़ रखा है, कितने सालों में खर्च करना है, जितना आपने लिख के दिया, मैक्सिमम 5 है, अदरवाइज जितना लिख के दिया। अगर आप खर्च नहीं करेंगे उतने सालों में, तो सेक्शन 11(3) कहता है कि उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। किस रेट पर? 30%। 115 BBI में कह दिया, उसके बाद 30% टैक्स देना पड़ेगा। या तो 5 साल में अप्लाई कर दो, और 5 साल में अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया सर? अब 6 साल नहीं है, 5 ही है। विद इन 5 ईयर यू हैव टू स्पेंड इट। पहले होता था 1 ईयर आफ्टर, आप 5 साल के खर्च कहिए, नहीं तो उसके ऊपर पूरा का पूरा टैक्स दीजिए। ऐसे एक फॉर्म 9A है, जरा ध्यान से सुनना। 1023C में 9A नहीं आता। जो 1023C में उनके लिए 9A नहीं है। जो 11-12 में है वो फॉर्म 9A भर सकते हैं, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। क्या कहता है? देयर इज ए इनकम विच आई हैव टेकन इन टू अकाउंट बिकॉज आई वॉज फॉलोइंग मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, मैंने ले ली, बट दैट इनकम हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड। जब रिसीव नहीं हुई तो मैं खर्च कैसे करूँगा? मेरे पास 5 करोड़ रुपए थे, मैंने बैंक में FDR करा दी 3 साल के लिए। फर्स्ट ईयर में जब इनकम अक्रू हुई, द इंटरेस्ट अक्रू हुआ, बट डिड आई रिसीव इट? नो, आई विल रिसीव इट ओनली आफ्टर 3 years। कंपाउंड इंटरेस्ट है। लॉ कहता है यू कैन फाइल एन अंडरटेकिंग अंडर फॉर्म 9A स्टेटिंग दैट देयर इनकम हैज बीन टेकन इनटू अकाउंट। मेरे पहले उसमें आ गई है प्रॉफिट एंड लॉस में या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, बट इट हैज नॉट बीन रिसीव्ड। I give an undertaking that I'll apply this income in the year in which I receive it or year following that. मैं खर्च कर दूंगा, लेकिन अभी मेरे पर रिसीव नहीं हुई। या एक और कारण है, for any other reason you cannot apply this income, आप कह सकते हैं I will spend it next year। ये 9A है, ये 10 वो नहीं है 11(2), मैं नेक्स्ट ईयर खर्च करूंगा। आपने खर्च नहीं करी तो सेक्शन 11(1)B कहता है वो टैक्सेबल हो जाएगी। और 1B में लिखा है कि टैक्स लगेगा एज पर सेक्शन 115 BBI विच इज एट द रेट ऑफ 30%। अब आपको 30% टैक्स लगेगा अगर आपने वो इनकम स्पेंड नहीं करी। ये भी लॉ हो गया। फिर 13 सेक्शन सबसेक्शन 1 क्लॉज C क्या कहता है? यू कैनॉट अप्लाई दिस इनकम फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन रेफर्ड टू अंडर सेक्शन 13(3)। मतलब उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते जो आपके रिलेटिव है, जो ट्रस्टी है, जो मैनेजर है, उसके बेनिफिट के लिए नहीं कर। अगर आपने कर दिया तो उतने अमाउंट पे टैक्स लगेगा 30%। पहले 30 नहीं लगता था नॉर्मल। फिर 13(1)D कहता है यू हैव टू कीप द मनी इन ए मोड गिवन अंडर 11(5) के मोड में, और आपने नहीं रखा, निकाल लिया, तो उसके ऊपर भी टैक्स 30% लगेगा। फिर वो कहता है अगर आपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन लिया है या और उसको मिसयूज किया है तो भी टैक्स कितना लगेगा? 30%। ये है 115 BBI। क्लियर हुआ? अब जरा आगे सुनना। कॉर्पस डोनेशन। पहले तो कॉर्पस डोनेशन 2 तरह की होती है, एक होती है स्पेसिफाइड कॉर्पस, एक होता है जनरल कॉर्पस। स्पेसिफाइड कॉर्पस मीन्स आई हैव गिवन दिस डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, I have given this donation for purchase of computer software, I have given this donation for library। ये specific corpus है। एक होता है general corpus, I have given you donation, it is for your corpus, but you may use it, you may keep it anything। ठीक है ना सर? सेक्शन 11(1)D कहता है donation with a specific direction that it will form part of the corpus of trust is fully exempt provided it is कहाँ? केप्ट अंडर सेक्शन 11(5)। जो भी डोनेशन होगी कॉर्पस की 11(5) में रखनी है। 11(5) में अगर नहीं रखोगे तो वो कॉर्पस डोनेशन माफ नहीं। 11(5) में सब कुछ आता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी आता है। अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी की डोनेशन मिली है तो ऑलरेडी 11(5) है,
लेकिन आपको मनी की डोनेशन मिली है 5 करोड़ रुपया, तो आपको कहाँ रखना है? 11(5) मीन्स या तो उसमें रखिए बैंक में, FDR करा लीजिए, या जो जी वो लिस्ट दे रखी है उस लिस्ट के अंदर रख लीजिए, तो हम आपको माफ़ कर दें। आ गया जी कॉर्पोरेट डोनेशन वहाँ पे। अब लोन है, यू हैव टेकन ए लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। एक और चीज़ सुनना सब, जो कॉर्पोरेट डोनेशन 31 मार्च 21 से पहले वाली है उसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा थोड़ी देर में। आपने लोन लिया, इज लोन एन इनकम? लोग पहले लोन लिया और उसको खर्च कर दिया तो उसको वो एप्लीकेशन मांग लेते। सपोज मैंने एक बिल्डिंग बनानी है 3 करोड़ की, मेरे बैंक में 1 करोड़ है, 2 करोड़ रुपया बैंक से लोन ले लिया, तो मेरा 3 करोड़ की बिल्डिंग ले ली मैंने। कितना एप्लीकेशन है करंट ईयर का? लोग कहते थे 3 करोड़ है, बिल्कुल गलत है, 1 करोड़ एप्लीकेशन जो मैंने अपना खर्चा। लोन इज नॉट एन इनकम, और जो मनी आपने लोन से यूज करी 2 करोड़, वो आपकी एप्लीकेशन नहीं। कब एप्लीकेशन मानी जाएगी? जब उस लोन को रीपे करेंगे। द ईयर इन विच यू पे द लोन प्लस इंटरेस्ट विल बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन। यही लॉ बना, लेकिन लॉ ने अमेंडमेंट कर दी है, बहुत खतरनाक अमेंडमेंट की है। इट विल बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन ओनली व्हेन द लोन इज रिपेड विद इन ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। यहाँ बेड़ा गर्क हो गया सर। मैंने बिल्डिंग के लिए लोन लिया 10 साल का, बिल्डिंग के लिए 15 साल का भी मिलता है। आप कह रहे 5 साल में वापस कर दो, नहीं तो एप्लीकेशन नहीं मानेंगे। आपने बिल्डिंग बना दी, अब लोन रीपे करेंगे, एप्लीकेशन है। अगर लोन 5 ईयर रीपे हो गया तो ठीक है, और विद इन 5 ईयर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगी? तो एप्लीकेशन मिलेगा ही नहीं मुझे। दिस इज समथिंग वेरी सरप्राइजिंग, लेकिन उन्होंने ये कर दिया है। मैं गया था, क्या करने जा रहे हैं? अरे कम से कम जो बैंकों से लोन लिया है, पर्सनल लोन छोड़ दो, जो बैंकों से लोन लिया है वो टर्म लोन मोर देन 5 ईयर है, तो आप कैसे कह सकते हैं आप वी शुड पे बैक इन 5 ईयर्स टाइम? पैसे होते तो लोन क्यों लेते हम? अगर लोन लिया है, अगर कॉलेज ने, अगर स्कूल ने, यूनिवर्सिटी ने, ये है, तो लोन लेके विद इन 5 ईयर पेमेंट नहीं होती, 10 साल भी हो सकते हैं, 15। माने नहीं, अगले साल देखेंगे, कहते हैं जो नया आएगा वो देखेगा, और खत्म में ये वो। अब कॉर्पस डोनेशन में क्या किया सर? आपने इस साल की ग्रॉस रिसीव 5 करोड़ है, आपने 6 करोड़ खर्च कर दिए, एक्सेस एप्लीकेशन है, एक्सेस है सर। अब ये एक्सेस एप्लीकेशन कहाँ से किया? या तो जो 15% पड़ा हुआ था मेरे पास उसमें से किया, या कॉर्पस से कर दिया। वो कहता है जी जो एक्सेस एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन नहीं मानी जाएगी, लेकिन अगर आपने कॉर्पस से किया है तो उसकी डिटेल दे दो। जब कॉर्पस में रीफिल करोगे, पैसे वापस करोगे, तो हम उसको एप्लीकेशन माने। सपोज पर कॉर्पस में 4 करोड़ पड़ा था, 1 करोड़ मैंने खर्च कर दिया, कहता है इस साल की एप्लीकेशन नहीं है। लेकिन जब भी वो 1 करोड़ रुपया वापस करोगे, किसमें? कॉर्पस में वापस कर दोगे, हम एप्लीकेशन मान लेंगे। यही लॉ बनाया ना सर, लेकिन यहाँ भी रूल बना दिया 5 साल में वापस करना है, और 5 साल से पहले वापस नहीं किया तो वो एप्लीकेशन नहीं मानी जाए। और दूसरा, 31 मार्च 21 तक जो भी बैलेंस था कॉर्पस का, उसमें से खर्च करोगे तो वो एप्लीकेशन नहीं माना जाए। ये भी लॉ बना दिया है सर। ये टॉपिक बड़े डिफ़िकल्ट है, मैं देख रहा हूँ लोग बड़े परेशान हैं कि क्या बोले जा रहे हैं यार, हमें तो समझ में आ तो रहा नहीं। आप जो और टॉपिक बदल दो मैं वो बोल देता हूँ। टॉपिक तो आपने रखा है, मैंने तो रखा नहीं है। जो तो 10B 10BB भर रहे हैं वो तो बड़े खुश हैं कि हमें कुछ समझ में आ रहा है। जो एडवोकेट बैठे हैं 10B 10BB वो कहता है क्या पागल की बातें कर रहा है यार, अरे क्या है, चैरिटी छोड़ दो। मैं क्या करूं सर, आप चेंज करना चेंज कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कईयों को नहीं समझ में आ रहा, मैं फेस देख रहा हूँ, आई एम सीइंग द फेसेस, और मैं सोच रहा हूँ मैं क्यों बोले जा रहा हूँ। आप कुछ भी पूछ लीजिए इनकम टैक्स में, आज वो ही कर देता हूँ, पूछ के खत्म करता हूँ, क्योंकि जो मर्जी पूछना पूछ लीजिए इनकम टैक्स का कुछ क्वेरी। हाँ जी, 1 मिनट। हाँ, यही तो गलती है। चैरिटेबल ट्रस्ट में क्या इनकम टैक्स एक्ट लगता है? नहीं। 11 सेक्शन में कहता है जो भी आया उसमें से एक्चुअल खर्चा एप्लीकेशन है, 30% तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है। सवाल ही पैदा नहीं होता। कमर्शियल सेंस में 1 करोड़ आया, अगर उसमें से हाउस टैक्स दिया एप्लीकेशन है, उसमें कोई इंटरेस्ट दिया एप्लीकेशन है, उसमें रिपेयर कराया एप्लीकेशन है, बाकी को खर्च करना है। ऐसा नहीं है कि 30% स्टैंडर्ड, ये तो वही चाहते हैं कि ये भी मिल जाए और बाकी 70% अप्लाई करें। ऐसा नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है, कोई लॉ नहीं लगता है ऐसा। वो कमर्शियल सेंस में इनकम निकलती है और उसको अप्लाई करना है।
हमें इनकम टैक्स एक्ट को नहीं देखना है। क्लियर? एक तरफ कहते हैं, वहां लिखा है देयर इज ए वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन बाय अ पर्सन with a specific direction that it will form part of corpus. डायरेक्शन कौन देगा? अरे डायरेक्शन वहां देगा, तो इसलिए वो कैसे एनोनिमस हो सकता है? हाउ कैन इट बी एनोनिमस व्हेन देयर इज अ डायरेक्शन कमिंग फ्रॉम द डोनर? डोनर डायरेक्ट कर रहा है तो वो कॉर्पस डोनेशन एनोनिमस होती ही नहीं है। कॉर्पस डोनेशन एनोनिमस नहीं, सुन लो, कॉर्पस डोनेशन एनोनिमस नहीं होती सर। मैं बात तो सुन लो, सुनो जरा। बालाजी तिरुपति, उन्होंने अपने हुंडी में लिख दिया फॉर कॉर्पस डोनेशन। वो कहते तो कॉर्पस की, इसको तो खर्च करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा डोनेशन, उसको क्या पता जिसने दान डाला है कि कॉर्पस क्या होता है या नॉन पर्पस। डायरेक्शन कहाँ से आनी चाहिए? डोनर से आनी चाहिए कि मैं ये कॉर्पस के लिए दे रहा हूँ। अगर डोनर ने डायरेक्शन नहीं दी, हुंडी में आपने डाल दिया, तो वो कॉर्पस डोनेशन नहीं है। इट इज़ नॉट। अभी एक और चीज़ बताऊंगा, कॉर्पस डोनेशन नहीं है। डायरेक्शन शुड कम फ्रॉम, और डायरेक्शन आएगी तो उसका अकाउंट नंबर, नेम नंबर, सब कुछ डिटेल लेनी पड़ेगी। यस, हाँ जी, आप मंदिर है, हाँ, योगा या एनीथिंग। अरे यार मंदिर के बातें छोड़ दो। ओके, सुनिए सुनिए, और योगा भी छोड़ दो, अभी बताता हूं। सुनिए सुनिए, सेक्शन 2 क्लॉज 15 में लिखा है चैरिटेबल पर्पस इंक्लूड्स मेडिकल रिलीफ, एजुकेशन, एक भूल गया, रिलीफ टू द पुअर। पहला है रिलीफ टू द पुअर, फिर आता है मेडिकल रिलीफ, एजुकेशन, और चौथा नंबर योगा आ गया। पहले योगा नहीं था, स्वामी जी ने करा लिया। समझ में आया? योगा आया ना, योगा है ना उसमें, योगा उसमें लिखा है लास्ट में 7th में, एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ, पहले लिखा वो प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग वाटर शेड, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट रिलीफ, और प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट और प्लेसेस। ये सब लिखा है, 4-6 है। 7वां बताऊंगा। पहले क्या? रिलीफ टू द पुअर, मेडिकल, एजुकेशन, योगा, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट, उसके बाद वही इंक्लूडिंग वाटरशेड वगैरह, ये प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट और हिस्टोरिकल प्लेसेस। लास्ट में है एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, जिसमें नीचे प्रोवाइजो दे रखा है, प्रोवाइडेड दैट एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर जनरल पब्लिक यूटिलिटी विल नॉट बी कॉल्ड ए चैरिटेबल पर्पस इफ इट इन्वॉल्व्स एन एक्टिविटी ऑफ कैरिंग ऑन any business, trade or commerce, or rendering any service to trade, commerce or business. वो नहीं माना जाएगा एडवांसमेंट। However, up to 20% of the gross receipt can be for this purpose. वो सिर्फ 7वें के लिए, 7वें के लिए, पहले 6 के लिए नहीं। पहले 6 के लिए सेक्शन 11(4)(a) लगता है। You can do any business which is incidental to the attainment of the objective of the trust, and separate books of accounts have been maintained for that business. लेकिन ये 1023C में नहीं है। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 11-12 में रजिस्टर्ड है तो ही वो बिजनेस कर सकता है। अगर 1023C है तो जज साहब ने बोला ना, न्यू नोबल एजुकेशन सोसाइटी में कह दिया कि अगर वो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकता अदर देन एजुकेशन, वो कर ही नहीं सकता। अगर उसने अपना ऑडिटोरियम किराए पे भी दे दिया तो वो भी बिजनेस माना जाएगा। ये लॉ है। उसने ऑडिटोरियम क्योंकि अपने स्टूडेंट के लिए करा तो कुछ नहीं, यूनिफॉर्म बेची, किताबें बेची, हॉस्टल चलाया, वो तो ठीक है, लेकिन किराए पे अगर हॉस्टल दिया और ये दिया, बैंक की उसके ब्रांच खोल दी तो लगेगा। हाँ, बैंक की एक्सटेंशन काउंटर खोला तो वो सिर्फ स्टूडेंट के लिए होता है, वो अलाउड है। तो ये लॉ बताया गया है। एडवांसमेंट नहीं कर सकते, लेकिन 7th कैटेगरी में, पहले 6 में बिजनेस कर सकते हैं। और भगवान के केस में तो कोई डोनेशन सारी एनोनिमस ही होती है। भगवान को तो गुप्त दान ही आता है। एनोनिमस डोनेशन 115 BBC में नहीं है। भगवान के लिए नहीं है, चैरिटेबल के लिए एनोनिमस है। चैरिटेबल में आप एनोनिमस डोनेशन ले सकते हैं मैक्सिमम 1 लाख और 5% द टोटल डोनेशन विच एवर इज मोर। बाकी पे टैक्स लगता है 30%, 115 BBC लगता है ना, लेकिन रिलीजियस को नहीं लगता।
तो भगवान को तो आते ही गुप्त दान है। भगवान को कहा है नंबर 2 का साथी है वो। और गुजरात में तो रिवाज है, मैंने कमाए ये ले तेरा शेयर 5%, 2%, 1%, बाकी मेरा ध्यान रखियो। राइट सर? सब दान देते हैं भगवान को, और भगवान कहता है तथास्तु। इतना शरीफ भगवान है, क्रेडिट पे भी काम कर देता है। सीए वाला लड़का कहता है पास करा दे फिर तेरे दर्शन करने आऊंगा, नहीं तो कसर ही नहीं करने आने, नाथ द्वारा आऊंगा पहले पास करा दे। फिर पास कर देता है, फिर वो जाता है ले तेरा 1100 रुपये, 2100 रुपये, 3100। वो कहता है तथास्तु। चोर भी जाता है चोरी करने तो भगवान के पास जाता है, भगवान आज माल ज़्यादा मिल जाए, वो कहता है तथास्तु, तू मेरा भगवान है। और हमारी लेडीज जो है 16 सोमवार के व्रत करती है, वो कहते हैं मेरी शादी करा दे, वो करा देता है, कहता भुगतना तूने है, मुझे थोड़ी भुगतना। बात समझ में आया? तो कर्मों का फल आपने लेना है। भगवान तो आपका साथी है क्योंकि आप उसके भक्त हैं, वो कहेगा यस, लेकिन कर्म आपने गलत किए तो आप भुगतेंगे। भगवान क्यों भुगतेगा भाई? भगवान ने तो तथास्तु कह दिया आपको, इसलिए वहां गुप्त दान अलाउड है, अलाउड है। और उसमें कोई भी आपको हिसाब नहीं देना है, और पूरा का पूरा अप्लाई कर दो, वो बात अलग है। अप्लाई तो कर रही है ना 85-15, लेकिन भगवान में अनोनिमस डोनेशन नहीं होता, तो वहां कॉर्पस की जरूरत क्या है? वो तो है ही सारा अनोनिमस, वहां तो पूरा ही अनोनिमस है। खर्च करना है, कॉर्पस का लेना है तो फिर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए, और फिर आप उसको जोड़ सकते हैं, नहीं तो आप खर्च करना पड़ेगा 85 और 15%। क्लियर है सर? क्लियर है? हाँ जी, टाइम बता दो सर, अभी है ना? चलो हाँ बोलिए Sir, any trust which is of a particular community, रिलीजियस कम्युनिटी और कौन means a particular community or society, say Brahmins or something like that, नहीं अलाउड, तो ATG अप्लाई कर सकता है? मैं कह रहा हूँ तुम्हें रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, ATG तो बात की बात है। नहीं लिया हुआ है फॉर ए पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी। इट कैन 5 टाइप ऑफ ट्रस्ट हैं जिसमें कोई भी हो, पॉलिटिकल रिलीजियस कम्युनिटी हो। एक तो विमेन का ट्रस्ट, एक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का ट्रस्ट, एक माइनर चिल्ड्रन का ट्रस्ट, ये वाले अलाउड हैं। अदरवाइज पॉलिटिकल रिलीजियस कम्युनिटी के लिए रजिस्ट्रेशन मिलता ही नहीं है, वो प्राइवेट ट्रस्ट माने जाते हैं, वो चैरिटेबल हो ही नहीं सकते। लेकिन रिलीजियस में कोई दिक्कत नहीं है, चैरिटेबल में दिक्कत है। रिलीजियस कैन बी फॉर एनी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी, वी आर नॉट सेइंग दैट। और रिलीजियस ट्रस्ट है तो रजिस्ट्रेशन मिलेगा, उसको रिलीजियस मानिए। रिलीजियस ट्रस्ट को 80G नहीं मिलता है, प्लीज। रिलीजियस ट्रस्ट को 80G नहीं मिलता। not for religious purposes, for all charitable activities. तो पब्लिक एट लार्ज का मतलब नहीं है सारी पब्लिक, कम्युनिटी एट लार्ज है ना तो मिलेगा, कम्युनिटी एट लार्ज है तो मिलेगा। तो उसको 80G मिल सकता है सर फिर वही बात है, नहीं वो लिया हुआ है, इसके लिए प्रोविजनल की बात लो है सर। 80G किस लिए ले रहे हैं? उसमें रिलीजियस एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। रिलीजियस एक्टिविटी 5% अलाउड है, 95% चैरिटेबल एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर आप उनके लिए एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, उनके लिए कपड़े दे रहे हैं, उनके लिए वो तो अलाउड है। लेकिन अगर रिलीजियस है तो 80G नहीं मिलता। So previously, sir, one further question. Previously, when the 80G was given by the commissioner physically, then they were refused. But on online, they have given the 80G registration. मैं उसके बारे में कुछ So, कि no, क्यों we are आजकल trying to know the value. क्यों आजकल क्यों वो मना कर रहे हैं? क्योंकि आप एक्ट पढ़ते ही नहीं है। इफ द AO इज सेटिस्फाइड, इफ द कमिश्नर इज सेटिस्फाइड, और बाकी मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आप उसको सेटिस्फाइड करिए कि वो चैरिटेबल एक्टिविटी है, अब बाकी कैसे करेंगे मैं नहीं जानता। चलिए सर, अदर देन चैरिटेबल ट्रस्ट, आशीष हैं जी, देखिए मैं 148 के बारे में नहीं बोलूंगा, 148A के बारे में बोल दूंगा। ये पुराने केस में तो अभी तो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आएगी, तब तक आशीष अग्रवाल कहाँ का कहाँ जा रहा है। हाई कोर्ट दिल्ली ने भी जजमेंट दे दी कि पुराने केस नहीं खोल सकते, कईयों ने कुछ दे दी। तो कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं देगा आपको, क्योंकि सरकार आजकल जज जो है
वो सरकार के साथ है। उनको सब पता है क्या एंट्री का धंधा है, सब बंद हो गया है। कैपिटल गेन, एंट्री, सब कुछ बंद हो गया। सीधे हो जाओ, नहीं तो मोदी जी सीधे कर देंगे, बात खत्म। ये उनकी वजह से नहीं है, मोदी जी की वजह से नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। आपके बारे में उनको सब कुछ पता है, वो जमाना चला गया। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग हो गई है, तो क्यों गलत काम करें। आप जाते हो ना बाहर, तो आपके बारे में सब पता है, कितनी बार बाहर विजिट करके आए, और अब बाद में आप वैट क्रेडिट लेते हो जाओ एयरपोर्ट पे आके, उसके बारे में पूरी डिटेल है कि वैट कैसे ले लिया क्रेडिट वहां पर। क्योंकि वहां पर या तो आपके बैंक अकाउंट में जमा होता है, या वहीं पे आपको मिलता है, आपके पासपोर्ट में लिखते हैं। ये समझ लेना, सबके बारे में पता है। मैं तो गया, कहता आप 8 बार अब्रॉड गए हो, मुझे बताया। मैं क्या गया था, लेकिन 7 बार तो मैं इंस्टीट्यूट के काम से गया था, लेक्चर देने गया था, मेरे तो एक पैसा भी नहीं खर्चा। एक बार बेटी को मिलने गया था, कहता वो हम नहीं जानते, स्कूटनी आएगी तब बताना कि तुमने खर्चा किया कि नहीं किया। फिर मुझे लगे, मैंने कहा चलो, मैं अमेरिका गया था बेटी को मिलने, लेकिन मैं टिकट ली थी दिल्ली न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क दिल्ली। उसके बाद तो मैं बहुत घूमा, उसके बारे में आपको कैसे पता लगेगा, आपने इमिग्रेशन से कर लिया। कहते चिंता मत करो, जब आप जाते हो और आपके सर्वेलेंस है तो आप फोटोएं खिंचवाते हो, अभी भी खिंचवाई थी ना, और फेसबुक में इमीडिएटली डाल देते हो। वे कहते हैं वी लाइक इट, वो लाइक कर रहे हैं उसको, आपको नोटिस कर रहे हैं। और हमारी बहू बेटियां क्या डायमंड रूबी सफायर शादी में जाती हैं, 5 मिनट में अपलोड कर देती है कपड़े पहन के, वो कहते हैं वी लाइक इट मोर। आप अमेजन से जो खरीद रहे हैं, आप फ्लिपकार्ट से जो खरीद रहे हैं, कैश ऑन डिलीवरी, अगर मोटा अमाउंट है, सब कुछ उनको पता है। वो छोटा अमाउंट 200-400 रुपए के लिए थोड़ी करेंगे। अगर आपने एक लैपटॉप खरीदा, आपने अगर टेलीफोन खरीदा, मोबाइल फोन, सबके बारे में उनके पास रिकॉर्ड है। क्या बातें कर रहे हैं। और वो भी लगा दिया कि 1,99,999 के ऊपर तो आप कैश ले ही नहीं सकते। वो तो ये सब कुछ पकड़ा जा रहा है। इंतजार कीजिए, सीधे हो जाइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ी आ गई। अरे देना क्या है, एक टैक्स ही तो देना है 30%, फिर भी क्यों नहीं देते, मेरे समझ में नहीं आ। नंबर 1 के पैसे की वैल्यू है, नंबर 2 के पैसे की कोई वैल्यू है ही नहीं। मैं बता रहा हूँ, वो जमाना चला गया जब वैल्यू थी। क्या फायदा, बच्चों को बिगाड़ोगे या खुद आप बिगड़ोगे। टैक्स दो, जान छुड़ाओ, और मेरे जैसे आराम करो, चिंता नहीं रखनी है। इसलिए मैं पूरा टैक्स देता हूं। जब से मुझे पता लगा ये होता है, तो कह दिया ना 100 चूहे खा के हज को चला गया हूं मैं। चलिए बोलिए बोलिए। सर कई ट्रस्ट ऐसे हैं जो 61 के बाद बने हैं, और उसमें लिखा है कि भाई ये पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए है, मगर इन्होंने स्कूल बनाई तो शुरू से ही आज तक हर एक कम्युनिटी के लड़के को वो एडमिशन देते हैं। तो फिर इसलिए देते हैं ना कि अलाउड नहीं है पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी। नहीं सर, इसलिए देते, मगर वो फिर 61 से पहले तो अलाउड थे। सर देखिए, ऐसा है, जो चीज़ें रिलीजियस से रिलेटेड है ना, अगर आप थोड़ा सा ठीक कर दें ना, वो तो अभी भी कह रहे हैं जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है ना रिलीजियस में, वो अप्लाई कर दे। मैं कहा पिछले केस खोल लोगे, वो कहते हैं नहीं खोलेंगे, आप अप्लाई तो करवाओ। लोगों को हम चाहते हैं कि वो अप्लाई कर दे, डर है पिछले केस ना खुल जाए। आप भी यही सोच रहे हैं ना पिछले, तो आप अप्लाई करवा लीजिए मंदिर, गुरुद्वारे, चर्चों को, नहीं तो बहुत दिक्कत आने वाली है। मैं बता सर दूसरा 10BB और 10B के लिए जो रिसिप्ट कैलकुलेट करना है 5 करोड़, तो ट्रस्ट का तो ठीक है, हम इंटरेस्ट डोनेशन जो वो पूरा ले लेंगे, मगर उसकी इंस्टीट्यूशन है, कोई कॉलेज चला रहा है, कोई स्कूल चला रहा है, तो स्कूल में क्या होता है कि 3 करोड़ की ग्रांट आई, 3 करोड़ का सैलरी दे दिया, और बैंक इंटरेस्ट का कुछ सरप्लस बचता है। रिसीट, ग्रांट भी रिसीट है, यानी सर सरप्लस देना है या पूरी रिसीट? सरप्लस नहीं है, टोटल ग्रॉस रिसीट। और इंस्टीट्यूशन का भी ग्रॉस रिसीट देना है जी, चाहे ग्रांट आई है वो भी रिसीट है। मोर देन 5 करोड़ 10B, लेस देन 5 करोड़ 10BB। तो इंस्टीट्यूशन का भी ग्रॉस रिसीट गिनना है। वो अलग बात है, जहां पर 50% से ज़्यादा ग्रांट आती है और आप 1023C3 IAB में है या AC में है, यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह, जो 50%, तो उस केस में तो वो उसमें तो है ही नहीं है, exempt उसमें तो रिपोर्ट ही नहीं बनानी, उसमें ना ऑडिट रिपोर्ट है ना कुछ है, उसमें सिर्फ रिटर्न कंपलसरी है। अभी सर कई ट्रस्ट जो बड़े ट्रस्ट है, जैसे आपने तिरुपति जी का बोला, ऐसे कई बड़े ट्रस्ट है, उसमें लोग भंडार
भगवान को डाल देते हैं। भगवान को, मगर ऐसा हुआ जब ये लॉ आया था मगर कि अभी भाई आप अनोनिमस डोनेशन नहीं ले सकते चैरिटेबल, तो मैंने वहाँ गया था कि सर मंदिर आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, ऊपर ऑपरेशन हो रहा है पेशेंट का, नीचे भगवान की मूर्ति लगी होती है हर ऑपरेशन में, अब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे पेशेंट को बचा ले, मेरे पेशेंट को बचा ले, और कुछ दान देते हैं। मैंने कहा उन्होंने मांगा तो नहीं है दान, क्या है इनको तो छोड़ दो। तब जाकर ये 5% और 1 लाख विच एवर इज मोर को माफ़ किया था। पहले नहीं था 5%, सारा 1 लाख था, 1 लाख तो कुछ भी नहीं होता। अब 5% ऑफ द टोटल डोनेशन और 1 लाख विच एवर इज मोर, उस पर आपको टैक्स नहीं देना, बाकी पे 30%। नहीं सर, वो तो ये मैं रिलीजियस ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ। हाँ, religious तो दिक्कत ही नहीं है। नहीं, मेरा दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि इंडियन रुपी का तो प्रॉब्लम है, मगर जो लोग डॉलर पाउंड डाल देते हैं भंडार में, तभी तो आजकल लिखा हुआ है डोंट पुट एनी डॉलर वगैरह वहां वो पर। लिखते हैं तो भी डाल देते हैं। नहीं, वो कहते हैं, ये मंदिर वाले अपने ही पैसे देकर कहते हैं कि डॉलर कोई डाल गया है। आप बात को समझिए, उनकी पोजीशन भी समझिए कि वो डॉलर डाल गए। वो डॉलर ना ही करो, ऐसे ही कैश करा के अंदर डाल दो, लेकिन डॉलर करेंगे तो वो यही कहते हैं अपने डॉलर को करके इन्होंने गड़बड़ की। नहीं, समझ में आया ना? नहीं, ये तो सर, बैंक देखिए, वाले लेते नहीं है पैसे, तो अभी मंदिर के पास ही पड़े कितने लाखों डॉलर पड़े हैं। सब फिर वो तो एक आध होगा तो कुछ नहीं कहेंगे, अगर लार्ज अमाउंट होगा तो अपने आप समझ जाएंगे क्या कहानी है ये। नहीं, एक्चुअली सर वो डीमोनेटाइजेशन में क्या हुआ है, ना ही करे तो अच्छा है। नहीं, सर, सर, देखिए, तो सब आप एक गवर्नमेंट हैंडल ट्रस्ट है। एक बार सीट के इधर आइए और आपको पता है क्या क्या हम करते हैं, और दाई से क्यों पेट छुपा रहे हो, मुझे सब पता है क्या क्या होता है। ये तो सब गवर्नमेंट ट्रस्ट है सब, जिसमें कलेक्टर सब मंदिरों में और वृंदावन में सभी ने दान लिए थे, वो डोनेशन के वो वाले, वो जो डिमोनेटाइजेशन आया था, पैसे लेके वापस कर दिए थे। 30%, 25%, 10% दिए थे ना, वो सब पता है उनको, छोड़ दो अब पुरानी बातें। चलिए सर, और कोई क्वेश्चन है? मैंने तो बोला इनकम टैक्स का कोई पूछ लीजिए। सर आपके बहुत हो गए, लेडीज फर्स्ट। अब पहले लेडीज फर्स्ट, वो पहले उन्होंने पूछा है। Sir, as you said, 10 BB form due date is extended to 31st March. हाँ, बोलो। अगर मैंने 10 BB फाइल किया और उससे मेरी इनकम बढ़ जाती है, तो मैं रिवाइज रिटर्न कैसे फाइल करूँ? उसकी तो ड्यू डेट निकल गई। कैसे बढ़ गई 10 BB पढ़ने पे? एक्चुअली गलत हो गया था वो इनकम कैपिटल। देखिए चित्र, ये वाली बात ITR यू अलाउड नहीं है चैरिटेबल ट्रस्ट को। आप ये बात कर रहे हैं कि गलती को सुधार रहे हैं, सुधार दीजिए, क्या कर लेंगे ज़्यादा। लेकिन गलत आपने जानकर 5 करोड़ से नीचे कर दी, 10 BB भरना है। अब आप कह रहे हैं कि 10B भर देती हूँ, 5 करोड़ से ऊपर है, यही किया है? नहीं, 10 BB पहले भरा था। तो लेकिन किस चीज़ की चीज़ छोड़ दिया आपने? पहले कैपिटल जो रिसिप्ट था वो इनकम में लेने ट्रस्टी ने नहीं बोला था, तो उधर चार्टर्ड अकाउंटेंट बढ़ जाएगा जिसने ऑडिट रिपोर्ट दी है कि कैसे मिस हो गया ये। There is no way of revising 10B or 10BB. How did he write? How did he check that? How did he check that? वो नई रिपोर्ट साइन कर रहा है और पिछली इनकम को कह रहा मैंने दिखाया नहीं है। मुश्किल पड़ेगी, कर देगा, CA से पूछ लो साइन कर दे, तो मुझे नहीं पता, लेकिन करना नहीं चाहिएगा। नहीं सर, ये चीज़ गलत है कि आप खुद कह रहे मेरे से गलती हो गई। अगर वो गलती हुई तो आपने रिवाइज रिटर्न करनी थी 31 मार्च तक, उसमें डाल, सॉरी थी 31 दिसंबर तक। ये रिटर्न तो आपको बेनिफिट दिया गया, ओनली यू हैव फाइल्ड ए रॉन्ग फॉर्म। इट हैज़ नॉट बीन गिवन दैट बिकॉज इनकम हैज इंक्रीज सो आई विल चेंज 10B 10BB। वो नहीं। हाँ जी सर, इधर थे। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। ये क्या होती है? मुझे नहीं समझ आया क्या है। वक्फ बोर्ड। हाँ, वक्फ बोर्ड बोलिए। हाँ, उसके पास अगर कोई इनकम आती है वो भी तो उसके ऊपर भी यही लॉ लगेगा। यस, वो चैरिटेबल में वक्फ बोर्ड आर पार्ट ऑफ द चैरिटेबल ट्रस्ट। वक्फ बोर्ड आर सपोज्ड टू फाइल द रिटर्न। वक्फ बोर्ड देखिए वहां पर लिखा हुआ है एनी अदर ऑब्लिगेशन। 3 तो है, ट्रस्ट, सेक्शन 8 कंपनी, सोसाइटी और एनी अदर लीगल ऑब्लिगेशन। तो वक्फ बोर्ड भी वही पोजीशन है जो बाकियों के लिए, कोई डिफरेंस नहीं है। अब वो उनको छेड़ कोई नहीं, वो तो बात मैं कुछ नहीं बोलूँगा।
लेकिन वक्फ बोर्ड भी कवर्ड है। चलिए। There are religious trust which was registered under section 12A since long, but while making renewal in the new scheme, as per the new provisions of the law, it is applied mistakenly, wrongly ticked, and got the registration certificate for provisional for 3 years. Actually, it was entitled for regular. सर 30 सितंबर को क्यों नहीं चेंज करा? अरे भाई मैं क्या बोलूँ, 30 सितंबर तक आपको टाइम दिया था कि आपने प्रोविजनल कल करा है, गलत किया, 6 महीने में अप्लाई नहीं किया, तो अप्लाई कर दो, क्यों नहीं किया? But that you were not aware of about that he had obtained provisional. प्रोविजनल के बाद अगर कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी हो गई तो 6 महीने में अप्लाई करना था, जिसके लिए डेट 30 सितंबर तक दे दी गई थी। अब नहीं दिया तो वो टैक्स लगेगा। Now, what is the recourse available now? ओनली रिकोर्स अवेलेबल इज अप्लाई न्यू। Any 119 अप्लाई न्यू, 119 में तो जा सकते हैं। Or how we can apply for new? Under which section we can apply? वही 10A, आपका नया तो 10A में ही जाएगा। नहीं, अभी ऐसा है जो न्यू प्रोविजन के लिए 10 AB, if we file from 10 पुरानी AB, डेट का नहीं होगा, नई डेट से मानेंगे। again provisional. हाँ, नहीं प्रोविजनल नहीं है, कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी हो गई है तो प्रोविजनल नहीं है अब। इफ यू हैव ऑलरेडी कमेंस द एक्टिविटी, इट इज अ रेगुलर रजिस्ट्रेशन, यू विल गेट इट, बट दे विल आस्क फॉर ऑल डॉक्यूमेंट्स फॉर द लास्ट 3 years, और सारे डॉक्यूमेंट देकर जैसे रिन्यूअल का लिए आगे होना है वैसे करना। No, we are ready for that, तो but करो ना। we don't find which section should be utilized. 10A में ही है। नहीं, 10 में with जो सेक्शन है उसका अरे सर आप रूल साथ में पढ़िए 17C, उसमें उन्होंने कह दिया है कि अगर आप ऑलरेडी कमेंस कर चुके हैं तो उस केस में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं। अगर आपने कोई कमेंट्स नहीं किया तो ऑनलाइन वो जो किया उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देने, तो आप अप्लाई कर दीजिए। नहीं, उस प्रोविजन में देयर इज वन ऑफ द एक्सेप्ट सर कि you should not have claimed any deduction under section 11 earlier. अरे सर मैंने वो बोला, आपको मिला कहाँ है? आपने लिया हुआ क्या, रिटर्न भरी थी जब अरे we had filed return since long because we were already registered under section 12A. रजिस्टर, फिर आपको प्रोविजनल ले लिया रजिस्टर के बाद? हाँ, वो प्रोविजन आ गया उसको। कैसे? नहीं, कई प्रोविजनल आया 5 साल के लिए, 3 साल के लिए। अरे सर फिर आपने अप्लाई गलत किया, तो आपको 30 सितंबर तो कहा था कि रेक्टिफाई कर लीजिए, आपने ओरिजिनल में आ जाए। अब दोबारा कैसे करें? उस डेट तक तो हो गया, उसके बाद तो सेक्शन 115 TD3 लग गया है, वो टैक्स लगा देंगे पुराने पैसे में 30%। तो नाउ नो ऑप्शन इज अवेलेबल। नो ऑप्शन, 119। ओके, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन सर? हाँ चलिए, क्योंकि इनको क्वेश्चन पूछने हैं, इनको लॉ नहीं आया है, तो इसे मैं क्वेश्चन ही जवाब दे रहा था कि सेटिस्फाई हो जाए। हाँ जी, एक मिनट बोलिए। Sir, my question relates to section 44AD. Sir, in 21-22, my turnover was below 2 CR and I was filing return under 44AD. In 22-23, it surpassed 2 crore. So I have gone for normal profit and loss and filed return. Now this year again my turnover is 2.80 CR. 2.8 CR. हाँ, तो वो तो नॉर्मल में जाओगे 2.8। But there is a 3 करोड़ वाली yes, दे रहे हैं। yes, yes. 3 करोड़ की 95% वगैरह है। Yes, yes. Allowed. So we can again go to 44AD. Correct. You can go to 44AD because you were out of 44AD, not because you opted for Yeah, it. it was compulsion. Because you were more than 2 crore. Yes, no sir. problem. Okay. You can go to 44AD 2.8, वो 3 करोड़ वाला है, मैं बता Yes, रहा हूँ। yes, 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 हाँ sir. हाँ, allowed है, allowed है। Thank 3 you, करोड़ में वो 95 पाई देख लेना। Yes, sir. चलिए ठीक है, अलाउड है सर, अलाउड है। चलिए, है सर जरा ये जरा सुन लेना, सीरियस बैठ, जरा इनको माइक दीजिए ताकि सारे सुने कि आगे से ये काम करना। माइक दीजिए इनको जरा। जीएसटी में बोगस परचेज है, इनपुट क्रेडिट को डिसअलाउ कर दिया, 271 में आपको पकड़ लेंगे, 100% टैक्स लगाएंगे ऑन द अमाउंट ऑफ द परचेज। किसको लगाएंगे? एंट्री देने वाले को, एंट्री लेने वाले को, एंट्री दिलवाने वाले को। नहीं सर, इनकम टैक्स में 100% परचेज डिसअलाउ कर देंगे। हाँ जी, 100% पेनल्टी, पेनल्टी है। परचेज वर्चेज कुछ ही वो तो उसमें करेगा 69C में, वो अलग है। बोगस इनकम टैक्स में तो टैक्स इनकम पे लगता है। फेक परचेजेस हैं तो पहले 271 कहता है देने वाले को 100% पेनल्टी, लेने वाले को 100% पेनल्टी, और पता लग जाए किसने दिलवाया है तो उसके ऊपर भी 100% पेनल्टी है। वहाँ तो सिर्फ इनपुट क्रेडिट डिसअलाउ किया है,
और यहाँ पर तो आपको 300% ये भी हो सकती है और 100 और फिर 271A क्लॉज में मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम 200% वहाँ टैक्स लगेगा, 200% वहाँ लगेगा और 100% पेनल्टी अलग है जी। 271A सबसेक्शन 9 केस यू आर लायबल फॉर 200%, वैसे तो पेनल्टी पे 200% पेनल्टी है मिस रिपोर्टिंग, ये मिस रिपोर्टिंग है, ये कोई वंडर रिपोर्टिंग नहीं है, मिस रिपोर्टिंग है। 200% वहाँ लगेगी और 300% यहाँ लगेगी, 100 और फिर भी करेंगे हम। Last two questions. हाँ बोलिए। Yeah, please ma'am, continue. हाँ सर, जो नया सेक्शन है उसमें ऐसा बोला है कि 5 साल में ही पैसे यूज़ कर देना है, सो बिफोर वी यूज टू इंटरप्रेट के 6th ईयर तक यूज़ करना है। वो अब खत्म हो चुका है 2 साल पहले। सो फॉर असेसमेंट ईयर 17-18 भी अब 5 साल ही रहेगा ना? बेटा जिस साहब जब से लॉ आया, लॉ केम फ्रॉम 1/4/2023। जब से लॉ आया था, मुझे डेट याद नहीं है, उसके बाद 5 साल हुआ है। पिछले का अगर 5+1 था तो 5+1 है। सो फॉर AY 17-18 में 6 साल में 6th ईयर में बेटा मुझे यूटिलाइज। जब तक डेट एग्जैक्ट याद नहीं होगी। 1/4/2023 में लॉ चेंज हुआ है। नहीं, पुरानी डेट का चेंज हुआ है। नहीं सर, फॉर सेक्शन 12 के लिए मैं बात कर रही हूँ। यस, वही तो कह रहा हूँ, किस साल से हुआ है? 2023। सवाल ही पैदा नहीं होता। सेक्शन 12 के लिए सवाल ही पैदा नहीं होता। 21 में या 20 में आ गया था। बिल्कुल गलत है, देखिए बिल्कुल गलत है, 23 में नहीं है सर। वो 10/23 के लिए आप बोल रहे हो कि 5 साल था, पर सेक्शन 12 और 11 के लिए वो 6th ईयर तक यूज करते थे। फिर मैं बोल रहा हूँ ना, 6 ईयर करेक्ट था, 5+1 मैंने बोला। हाँ। लेकिन 2-3 साल पहले सिर्फ 5 ईयर हो गया था, 23 से नहीं हुआ है, ये गारंटी दे रहा हूँ। 23 से ही आप बेटा एक्ट निकालो, फिर देखो। आज कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखो फारसी का, बिल्कुल गलत है 23 का। ये 21 या 22 में हुआ है कि आप 6 साल कर ही नहीं सकते। सर गलत डेट बोल रहे हैं, डेट गलत है। जो भी डेट है उसके बाद का, पिछली डेट करनी। सर आप मान लीजिए 20 से है। मैं नहीं मानूंगा। सपोज 21 से है। हाँ सपोज 21 तो फिर आपका 6 साल अलग। सर तो उसके आगे वाले जो भी साल है उनका इक्वेशन तो 6 साल तक कर सकते हैं। 5 तो मैक्सिमम है, 3 साल का दिया तो 3 साल ही है। ये मसला 5 ईयर इन जनरल है। यू हैव टू अप्लाई दैट एक्यूमुलेट फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। अगर आपने अप्लीमेंट 3 साल के लिए किया तो 3 ही है। नहीं, मैंने 5 साल के लिए। हाँ तो ठीक है, 5 साल। तो 5 ईयर 6वें साल में नहीं जा सकते, 5वें में खर्च करिए, नहीं तो टैक्स लगेगा। और टैक्स भी लगेगा 150 BBI में 30%। जो डेट से चेंज आया उसके आगे साल के लिए भी। आगे नहीं, अगले साल, ईच ईयर इधर सेपरेट ईयर। हर एक का 5-5 साल है। पिछले का 5 खत्म हुए, दे दो, अगले का 5 साल जाए। इवन द लॉ इज अमेंडेड, पर उसके आगे के सालों के लिए तो 6 साल अगले के लिए हुआ है, पिछले सालों का 6 ही है। ठीक, पर डेट 1/4/2023 नहीं है। बार बार कह रहा हूँ, नहीं है। 23 तो अभी आया है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चेक कर लीजिए, आगे चलो। हाँ जी सर, एक मिनट। जो नए लोग हैं आपके, कुछ कोई और है जो जिसने नहीं पूछा हुआ तो पूछ लीजिए। आ गया एक्ट। Last question of today's session with Girish sir. अब जा देखिए सर, वो कह रहे सेक्शन बताओ। हेलो सर, ट्रस्ट में फॉर्म नंबर 10 AC देखो ना, 11.5 कहाँ से आ गया? इन्वेस्टमेंट 11.5 में है, लेकिन टैक्स तो 13.3 में लगता है सर। हाँ 11.3 में, 11.3 में लगता है। 11.3 हाँ जी। In case of a charitable trust, 10 AC order is issued effective from the AY 23-24. But when we have applied, there was no tab open for the 22-23. So for 22-23, section 11-12 benefits shall not be available. पहले वो प्रोवाइजर होता था, आपको बेनिफिट दे देते थे। अब तो प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं। But when we have applied, there was no tab open from the department side. क्या मतलब, क्या नहीं? Means application जो करनी होती है that is online that is online. तो आपने ऑनलाइन अप्लाई की थी? ऑनलाइन अप्लाई किया था, लेकिन फॉर जब हमने अप्लाई किया तब AY 22-23 का टैब ही ओपन नहीं था, क्योंकि देयर वाज अ डिले। खत्म हो गया, फिर उसके बाद तो 23-24 ही मिलेगा। लेकिन आफ्टरवर्ड सर्कुलर्स वर इश्यूड।
क्या इशू कर रहा है? सर्कुलर जो डिले के इश्यू हुए कॉन्डोनेशन के, अगर आपने वो 30 सितंबर तक दोबारा कर दिया था तो मिल जाता। अच्छा 30 सितंबर तक करा तो मिल जाता। हाँ जी मिला, ओके। चेक कर। चलिए और है कुछ? हाँ जी, ये 12 बजे तक टाइम है। मेरा लास्ट क्वेश्चन। हाँ सर, वन ट्रस्ट हैज accumulated for 5 years. Before expenditure, before the completion of the 5 years, that trust was amalgamated in another trust. That was an Amalgamated. Merge. It was merged with the other trust. So, what will be the effect on the unutilized accumulation? वो 5 साल ही रहेगा। पर 5 साल अभी पूरा नहीं हुआ तो वो खर्च करेगा। न्यू ट्रस्ट विल अमलगमेटेड ट्रस्ट मर्ज कर दिया ना आपने। हाँ, मर्ज किया अकॉर्डिंग टू अप्रूवल, उसके साथ किया जो 12A में कवर्ड है। हाँ, ऑल नो प्रॉब्लम। बट अंडर विच यू स्टेप इनटू द शूज ऑफ द अर्लियर वन। अब ऑफिसर नहीं मानेगा तो विथ प्रोविजन वी शुड एक्सप्लेन। लर्नेड ऑफिसर तो मानते ही कभी नहीं है। चलिए सर बताइए, और कोई सवाल है सर? हाँ, 1.BB I C anonymous donation. Yes. I know. Can you explain regarding this section, because this is one difficulty regarding this. क्या कह रहे हैं? 115 BBC सेक्शन के बारे में थोड़ा बताएंगे डिटेल में? मैंने बताया ना। हाँ. कि सेक्शन 115 BBC कहता है if a person receives anonymous donation, so in that case the anonymous donation exceeding 5% of the total donation or 1 lakh, whichever is more, is exempt. Exempt means not taxable at 30%, balance is taxable at 30%. But कौन? Number 1, charitable trust covered under 1112 or 1023C. Partly charitable, partly religious, allowed provided they have received in the name of religious, not in the name of charitable. Charitable भी आएगा तो anonymous माना जाएगा और religious trust are not. So जितने भी charitable trust है वो anonymous donation ले सकते हैं, maximum 5% of the total donation और 1 lakh, whichever is more. इससे ज़्यादा अगर anonymous है, मतलब आपने उसका name, address, proof नहीं दिया, ATG की बात नहीं कर रहा, सबका नाम, एड्रेस, पैन नंबर देना है, नहीं दिया तो उसके ऊपर टैक्स 30% लगेगा, 30% टैक्स लगेगा। हाँ जी सर, फॉर द AY 22-23 चैरिटेबल ट्रस्ट में अगर रीपेमेंट लोन हुआ, अभी 5 साल का क्लोज अभी 21 के पहले का कोई दिक्कत नहीं है। 21 का पहले अगर रीपेमेंट ऑफ लोन हुआ तो वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम माना जाएगा। अगर 31 मार्च 21 के पहले का लोन लिया हुआ है तो नहीं माना जाएगा। 31 21 इससे पहले का लोन लिया हो और रीपेमेंट रीपे करेंगे तो एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। अगर 31 मार्च 21 के बाद लेंगे तो रीपे करेंगे तो माना जाएगा, पर पीरियड ऑफ 5 ईयर में रीपे करना। यही तो मुसीबत डाल दिया 21 का, आप देखिए ना डाला। लोन बोरोड, लोन 11-3 देखा नहीं है कि 5 साल कब आया, वो कब आया, 6 साल वाला, बताओ ना, नजर ही नहीं आया तो करे कहां से? चलिए सर प्लीज। किस ईयर से? 20 not 23। दिखाइए। Amount so accumulated if it not utilized, that shall be taxable in year of the 5th itself. 1423 means 23-24 assessment year. It is not 23-24 previous year. Please note. Yes, yes. हाँ, तो meet previous year 22-23, वो 23 previous year 22-21 for 23 का मतलब आप assessment year होता है ये। Finance. 18 तो मैंने पहले ही कह दिया अलाउड है सब आपको करना। बेटा पुराना देखिए आपके पास एक्यूमुलेशन दिया, अब एक चट पढ़ता हूँ, ओमिटेड कब किया देखो, 1 मिनट, ये है फाइनेंस एक्ट 2022 विथ इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, दैट इज 11(3)(c). बारह नंबर अपॉइंट किया गया, वर्ड और इन द ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग omitted by the Finance Act 22 with effect from 23, that means 22-23 प्रीवियस ईयर का आपको ओमिट कर दिया गया है। तो आपने जो पहले डाला हुआ था वो आपका 5 साल पूरे नहीं हुए। 5 साल मेरे पूरे नहीं हुए हैं, 6th ईयर हो रहा है मेरा 23-24 में, पर वो फिर भी 23-24 फाइनेंशियल ईयर। यस,
पर वो फिर भी क्योंकि मैम ओमिटेड हो गया है, तो वो तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उसको आपको अप्लाई करना। तो फॉर 17-18 भी मुझे 6th ईयर नहीं मिलेगा, मुझे 5 साल में ही कर देना है। बेटा देखो 6th ईयर लिखा नहीं था, हाँ. You could accumulate for 5 years. Yes. But 11-3 में लिखा था हाँ. that if you have not been able to raise, you can spend next In year the also. 6th year. और वो हटा दिया गया हाँ. 22-23 से हाँ. प्रीवियस ईयर। हाँ. तो फिर तो आपको 5 साल में ही करना था। आपका यू वर इन्फॉर्म्ड इन एडवांस कि 22-23 के बाद ये नहीं हो। So for 17-18 also मुझे 22 में कर देना था। So my second question सॉरी is, मैंने 22 करा तो 23-24 असेसमेंट ईयर है, हाँ. प्रीवियस ईयर नहीं है। हाँ. हाँ ठीक है। So now my second question is 10-23 में जो 5 साल एक्यूमुलेशन की बात थी, अब वो टैक्सेबल हो जाएगा अगर एक्यूमुलेशन यूज़ नहीं किया, वो भी उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 22-23 से लाए, पर उसके पहले वाले जो एक्यूमुलेशन थे, 115 BBI नहीं था, हाँ, तब नॉर्मल रेट था। BBI में आकर अब 30% लगेगा। पर BBI 10-23 को भी एप्लीकेबल है। हाँ दोनों का है BBI, दोनों का लिखा है BBI में। Okay. चाहे वो 10-23C में हो चाहे 11-12 में हो, BBI दोनों के लिए लगना है। So for my assessment year 17-18 सेम 10-23 30% वाला है, तो वो मैंने यूज़ नहीं किया है, पर टैक्सेशन का तो कोई था ही नहीं क्लॉज तब तक, पर अब ला दिया है, तो अब करेंगे नहीं, तब अलग बात थी। तब आपने 6 साल नहीं कहा था, आपने कहा 5 साल एक्यूमुलेट कर रहे हैं। आज जब आपने देखा तो 5 साल खत्म हो रहे हैं और लॉ में वो ओमिट कर दिया गया, तो फिर तो आपको ओमिट ही कर दिया। वो रिलेट टू द ईयर नहीं है, दैट आफ्टर दिस डेट इट कैन नॉट बी नेक्स्ट ईयर। तो 22-23 प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर 23-24 में ये ओमिट हो गया है। तो 21-22 वाला था वो आप 22-23 में कर सकते हैं, लेकिन 22-23 वाला 1 साल नहीं ले जा सकते। ये इसका मतलब है। ठीक है जी, हाँ जी, चलिए। Thank you, sir. Last question of the day. Sir, the 5th edition of Tax Conclave, slogan of the 5th edition of Tax Conclave become सुधर जाएंगे या मोदी सुधार देंगे? मैं नहीं सुधारूंगा, मोदी जी भी नहीं सुधारेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुधार। Now that has become a slogan of the 5th edition of Tax Conclave. लिख दो, सुधर जाओ नहीं तो मोदी जी सुधार देंगे। और मोदी जी ने दोबारा आना ही आना है। Now the counterpart is that interference by the government, number one, interference by the government in the judiciary, that is number one. Bringing down the irrational provisions. Number three, execution of the said provisions by any means. And number four, an important one, when government considering Tola is more than the statute, sir, what is the view of tax wizard who is appearing, who is explaining us since last 2 years? मैं एक चीज आपको बता दूं, the mindset of the judges have not been changed by the government. Mindset of the judges have been changed, otherwise also they are telling कि देखिए ये अब जो चोरी हो चुकी है अब इसको रोकनी पड़ेगी। माइंडसेट ऑफ गवर्नमेंट होता तो इलेक्टोरल बॉन्ड को वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं करते, ये नहीं कही है। लेकिन ये हो गया है कि अब स्टैचू भी सोचने लग गया, अब जजेस भी सोचने लग गए, ये जो एंट्रियों का धंधा है, ये जो कैपिटल गेन का धंधा है, ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। ये उस वजह से हुआ है। आप कहते हैं गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होती। गवर्नमेंट का जब देखते हैं कि लॉ बनाया है, दे गो बाय द रूल ऑफ द लॉ। अब आशीष अग्रवाल रूल ऑफ द लॉ ही है ना, आपके अगेंस्ट ही जा रहा था ना। अब उसके बाद वो जजमेंटें आ रही हैं, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट तक तो पहुंची नहीं ना वो जजमेंट। तो क्या होगा आप सोच रहे हैं? देखिए आप केस जीतते हैं, लेकिन क्या सारे केस जो जीतते हैं अंदर से आपको भी पता है कि मेरी आर्गूमेंट से जीत गया, अदरवाइज है तो केस बेकार। सबको पता है कि तुम्हारे क्लाइंट ने क्या किया है, लेकिन फिर भी हम जीत के ले आते हैं। 90% तो टेक्निकल ग्राउंड से जीत जाते हैं, जीते हैं नहीं हमने टेक्निकल ग्राउंड, ये वाला बात। लेकिन सबको पता है सर, since last 5 years both the ways. सर मैं पहले इधर था, जब से मैंने लॉ बनाना शुरू किया तब देखा यार लोग तो टैक्सिंग 8 करोड़ रिटर्न है सर, 8 करोड़ 4 करोड़ रिटर्न है, 4 करोड़ 10 लाख में 1 पैसा टैक्स नहीं आता। 4 करोड़ 10 लाख नो मनी, 1 करोड़ 63,000 पर्सन
आर पेइंग टैक्स, टैक्स नहीं, शोइंग इनकम अबाउट 10 लाख। कितने? इस इंडिया में 1,63,00,000 लोग हैं जो 10 लाख से ऊपर इनकम दिखाते हैं। मैंने कहा दिखाते हैं, समझ में आ रहा है कितनी इनकम वो आपको भी पता है, कितना टैक्स देते हैं लोग, कितने और उस 1,63,00,000 में 80% सैलरी वाले हैं, तो आपको पता टैक्स को दे ही नहीं रहा है। और फिर हम टैक्स गए, अब मैं पहले नहीं था, कितना 70,000 करोड़ रुपया मनी लॉन्ड्रिंग होकर पैसे बाहर चला गया। और वो क्या हुआ कि वो पासपोर्ट लेते थे LRS में, लिबरल रेवोल्यूशन स्कीम, और अपना एड्रेस चेंज कर लेते थे और $2.5 लाख बाहर जाता था। ये TCS क्यों आया? उन्होंने कहा पैसे तो जा रहे हैं, लेकिन लोगों ने तो 70% ने रिटर्न ही नहीं भरी हुई है। 70% लोग थे उसमें से जिन्होंने रिटर्न कभी भरी नहीं, और वो पैसा अब्रॉड जा रहा है। इस कंट्री का पैसा अब्रॉड जा रहा है, तो कौन लेके जा रहा है? इसलिए ये TCS आया। कितना? 1%, 5%। मैंने कहा फिर ये 20 क्यों कर दिया? कहता अभी भी लोग कर रहे हैं, तो हम सोचते हैं कम से कम 20 तो आ गया, 30 नहीं मिला, 20 तो आ गया। मजबूरी है जब वहाँ जाओगे। सर 1 लाख कितने हज़ार लोग हैं सिर्फ जो 2 करोड़ के ऊपर इनकम दिखाते हैं? कितने लोग हैं आप बताइए ना। सर वी शुड नाउ टेल आवर क्लाइंट्स कि प्लीज स्टार्ट पेइंग टैक्सेस। बढ़ा है GS तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बढ़ाया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो रखना ई-वे बिल, और उसके बाद आपको पता लग जाएगा क्या जा रहा है। तो ये अब वक्त बदल चुका है, टैक्स दीजिए। क्यों नहीं देते टैक्स? क्या किस काम के लिए आएगा? मैं भी आपके जैसा हूँ, किस काम के लिए आएगा? मेरे बच्चे भी काटूंगा अपने नंबर 2 लेके। चला गया जमाना, अब तो क्यों अब हम ये कहें प्लीज़ स्टार्ट पेइंग टैक्स। ये एंट्री का धंधा, ये कैपिटल गेन का धंधा, ये उल्टी सीधी एंट्रियों का धंधा, ये इनपुट परचेज का गड़बड़ करने वाला धंधा, वो आटे में नमक चलेगा, नमक में आटा नहीं चलेगा। समझ में आया सर? मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ वक्त बदल गया है। मैं डिपार्टमेंट से नहीं आया, लेकिन डिपार्टमेंट की हालत देखी मैंने कि सर पैसा ही नहीं देते लोग। अगर दे तो क्यों नहीं कर रही? कितने हमारे दिल्ली में ही लोग होंगे जो 1 करोड़ से ऊपर होंगे, जो टैक्स 10 लाख इनकम। अरे 10 लाख इनकम क्या होती है आजकल के ज़माने में? खाने का रोटी खाने को नहीं मिलेगी अगर 10 लाख इनकम घर में कमाएगा और बच्चों को 40,000 रुपये महीने की फीस देता है। अरे वो इधर करता है, वो कहाँ से कर रहा है सर? अब आप अपने दिल से पूछिए, मैं और आप क्या करते थे? अब नहीं मैं करता। मैंने आपको भी ऑनेस्टी में ले लिया है, कभी आपको मैं तो नहीं करता। सर अब चीज़ें नहीं है, अब हमें अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। नहीं बदलेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बदल देगी। 616 रुपये मेरे इनकम में आए एक जगह। मैंने कहा ये मैं सारे देता, मेरा कोई रिटर्न भरने वाला कहता है ये 616 रुपये नजर आ रहे। मैंने तो सब कुछ तेरे को दे दिया। बुलाया उसने, बैंक ऑफ बड़ौदा। मेरा तो अकाउंट ही नहीं है बैंक ऑफ बड़ौदा में। कह रहे 616 रुपये लिखे। वो याद आया 2016 माई वाइफ डाइड। एक मेरा वहाँ पर वो था लॉकर था, लॉकर खाली करने गया, उसमें FDR ली हुई की 10,000 रुपये की, उन जमाने में ले ली। उसने कहा सर अभी ड्यू नहीं हुई, बाद में ले लेना। भूल गया 10,000 रुपये। और एक उसका अकाउंट खुला था, इनऑपरेटिव अकाउंट। वो 10,000 का इंटरेस्ट वहाँ क्रेडिट होता था और इनऑपरेटिव की पेनल्टी लगती थी। और 616 रुपये में क्या है, ये कैसे लगा? बैंक में गया, खोला, वापस लिया, 37,000 रुपये मिल गए। मैं कहा थैंक यू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। 616 ने 37,000 रुपये दिलवा दिए मुझे। तो सर आपको इन्फॉर्मेशन पूरी उनके पास है। आप सोच रहे हैं कि नहीं है, वो वक्त बदल चुका है। अब बहुत कुछ उनके, अभी तो वो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट थोड़े दिन और रुक जाइए, क्या क्या आएगा। एक दिन एक ऐसा आ जाएगा, सब कुछ हमने लिख दिया, सिर्फ रिटर्न साइन कर दो, हमें नहीं चाहिए। आपने ये देखा है 148A क्यों आया है? पहले 148 था, he has reasons to believe that income has escaped assessment, और वो 148 देता था। अब कहता हमें पता है, ये ले इनकम has escaped, शो कास्ट दे रहा हूँ, बता जवाब एस्केप हुई कि नहीं हुई, बदला नहीं बदला है। इसका मतलब उनको पता लग चुका है कि आपके पास क्या है, और दे देंगे। 3 साल कर दिया, 10 साल से वो कर 6 साल का, लेकिन 7 साल वो भी तो बढ़ा दिए। सो आप ये समझना कि अब वो इन्फॉर्मेशन उनके पास है, वो आपको लिख के भेजेंगे आपकी ये इनकम एस्केप हुई है। अब आप जवाब दो, एस्केप हुई कि नहीं।
तो बदला ना लो। ऐसे तो नहीं है कि पहले वो कहते थे हमें पता लगा है, फिर आप कहते थे रीज़न बताओ, आप कहते थे, वो कहते थे पहले रिटर्न भरो फिर हम बताएंगे रीज़न। अब कहते जो रीज़न तो मैं बता रहा हूँ ना, उसका जवाब दो क्या होगा। आया ना 148A, एज क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी, ये इसलिए आया। सो अब चांस नहीं है, क्लाइंटों को कह दो बस। दिल खराब हो रहा है कि अब तो मौका नहीं मिल रहा है हमें, अब कुछ नहीं होगा सर। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. I request all for a standing ovation for the sir. Thank you, sir, for devoting your valuable time and addressing queries. कुछ स्पीकर्स ऐसे होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि बस सुनते ही जाए और ये सेशन ख़त्म ना हो, पर समय की अपनी मर्यादा है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर ऑलवेज। एंड एक और बात मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी कि सर हैज़ कमिटेड फॉर कमिंग इन आवर टैक्स कॉन्क्लेव 2025। और सर आपने कहा सुधर जाए, तो हम पूरी कोशिश करेंगे एज अ टैक्स प्रोफेशनल्स कि हम सुधर जाए और हमारे क्लाइंट्स को भी सुधार दे कि नाउ देयर इज नो स्कोप ऑफ एनी टैक्स इवेजन। नाउ आई रिक्वेस्ट आवर एमिनेंट स्पीकर Dr. C.A. Girish Ahuja sir to felicitate our committee members for their hard work and dedication for organizing this event. For C.A. Purushottam Khandelwal sir, please stand and please receive the memento from our eminent speaker. Followed by Advocate Dr. Dhruven Shah. Thank you. Advocate Ramesh Trivedi ji. Followed by Advocate Sunil Shah. Advocate Amit Soni ji. Followed by Advocate Maulin Shah. And then C.A. Maulik Patel. Followed by C.A. Sanjay Patel. I request all the dignitaries on the dais to please come forward for the group photograph. And we are immediately after this, we are starting. I request all the organizing committee members to please come forward for the group photograph.